to start with the next topic. Okay, so I'll be, as I've already told you, that I'm taking all the topics from in this sequence. Okay, so we are taking the TNHE 1 courses these days. So today I'm going to take the unit 6, which is a chapter. Actually, they are named it as a unit. So, okay, these are the chapters ones. Okay, so the chapter 6, which is about the balanced diet, because till this time we have actually gone through all this nutrients and the balanced food diets, whatever we require in our diet. So how much we really need to require, so now we are going to discuss about that too. Okay, so first of all, whenever you have to actually uh, okay, Aruna ji, okay, ठीक है जी. Actually, yeah, the everybody I really wanted to tell you, because everyone needs to be discussed in the English also, then I have to repeat the same thing in the Hindi also. Okay, so hopefully there is no Punjabi ones. Okay, so I'll be going to explain in both of the languages. Okay, so whenever you don't understand, so you can ask me in between. I don't mind actually, and as many time you really want to discuss, you can actually. Okay, so we'll be going to discuss about okay, some persons they don't know actually the Hindi at all, so I have to take care about everyone. Okay, so everyone is most welcome on the WhatsApp to ask any of the question if you don't get it, so I'll be going to explain. Okay, so and these days I was like little bit busy because I'm working as an associate professor in the Chandigarh University. So uh, up now these days now, after in the next week, so I'll be having the holiday, so we'll be working on more with you. Okay, so whatever you will be like requiring, so I'll be giving you more of the literature, or more I can take more of your questions and queries in a better way. Okay, so these days the examination season is going on, so little bit just be here for a few days, and afterwards I'll make you understand, because your exams are not near, you have to appear in the exams in December. Okay, so because you are from the January batch, so there is no need, we have a sufficient time, I can make you understand, it's just a few days. Okay, then by the next days, um, ओके, जो त्रिशा शर्मा, काइंडली प्लीज त्रिशा शर्मा जी को भी भेज दीजिए लिंक ऑफ व्हाट्सएप, सो दैट दे शुड बी एडेड टू द ग्रुप. Okay, so every time some new persons are there, because the new persons they are getting now they have started attending, so they are not into the group, so they should also be added. Okay, so now actually we will be going to start the actually topic. Okay, so now yes, somebody is speaking. Harish Kumar ji, Harish Kumar se jo bhi hain, I cannot hear you, you have spoken something, I haven't heard. मुझे सुना. no, हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैम एक्चुअली मेरा नाम नैना है. मेल आईडी एक्चुअली हस्बैंड के नाम पे है, तो हरीश कुमार के समझ नाम गई, से हाँ आता है. जी हाँ जी, समझ गई हाँ, थी, नहीं यस. मैम कुछ बोल नहीं रही थी. आई एम जस्ट आस्किंग माय सन. Okay, okay, that's fine. Okay, so that's what I'm just telling you, okay, that I'll be taking you more of the queries, whatever you'll be going to ask. I'll be taking more of this. Just a matter of the few days. Next week, I'll be attending you with the more queries. Okay, and Hindi and English wale please thoda thoda understand कीजिए. I'll be speaking both of the things again and again. Once in English, once in Hindi. Okay, so I'm taking care of all these. And फिर भी समझ नहीं आता है, so you can actually send me the messages on my WhatsApp number. I've shared with you all, or in the group, or individually. Most welcome. Okay. So now we are going to start about the balanced diet planning. Okay, and the food also. कैसे balanced diet? Because now till the जितने भी lecture हमने attend किए हैं ना, so we have come through that what are lipids, what are carbohydrates, what are proteins, minerals, and vitamins, what is roughage, what about the water, how much water we have to take it out. Okay, so everything we have already discussed. Now these are actually the फैमिली मेंबर्स ऑफ द न्यूट्रिशन. हम क्या खाते हैं, यही सब कुछ खाते हैं, इनसे बाहर तो कुछ नहीं है. बट अब हमें ये डिस्कस करना है कि कब, कितना, किस टाइम, किसके साथ, और कब नहीं भी. ये नहीं कि हमने सिर्फ ये कब कब कितना कितना खाना है, किसके साथ खाना है, लेकिन किसके साथ नहीं भी खाना है और कब नहीं भी खाना है. बोथ दी थिंग्स. ओके, बोथ द वेज वी हैव टू डिस्कस इट अबाउट. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्लान करते हैं ना कोई भी डाइट, कैसे करना है, सब हमें एक्सप्लेन कैसे. सबसे पहले तो बैलेंस डाइट जो है वो हमने देखनी है कि कौन कौन से फूड आइटम्स हमें रखने हैं. ठीक है,
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन से फूड, विच फूड आइटम्स वी रियली नीड टू ऐड, ओके, बिकॉज एवरी, अब मैं आपको एक ये वर्ड बताती हूँ, इसमें हमें ये थोड़ी सी, हाँ जी पल्लवी जी, आपको मिल जाएंगी पुरानी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी क्लासेस, आप फेसबुक इग्नो की जाएंगी, उस पर भी आपको पुरानी क्लासेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सब मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सारे फैमिली मेंबर्स का पता चल गया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि कितना, और सबसे बड़ी बात है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, अगर आपने बैलेंस डाइट या फूड आइटम या किसी के लिए भी देखना है, ठीक है, सो you have to see individually to each and every person, हर पर्सन अपने आप में एक अलग है, हर पर्सन की अलग पसंद है, हर पर्सन की एक अलग चॉइस है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर इवन आप देखोगे कि अगर आप कोई एक तरीके से बना हुआ फूड खाता है तो दूसरा बंदा उसको नहीं खाता है, उसकी एक एम्बियंस, उसका अरोमा उसको पसंद नहीं आता है। सो एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट वन। सो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। पर्सनलाइज्ड वर्ड हमेशा याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप फूड प्लानिंग करते हैं, फूड बनाते हैं, या फूड की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स आप देखेंगे, तो अगर देखो आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई गोभी खाता है उसमें क्या देना है, दाल खाता है उसमें क्या देना है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस। आप, कई लोग बैंगन बिल्कुल नहीं खाएंगे, ब्रिंजल से नॉट एट ऑल इट, किसी भी उसको फॉर्म में दिखाओ, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपने उसमें कुछ देखे, कुछ बनाया है, उसमें कुछ ऐड करके आपकी डिश है, बेसिक चीजें वो है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि वो इतनी अच्छी डाइट नहीं होती है उसमें, बट मैं आपको डिस्कस करने के लिए बता रही हूँ कि पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आपको देखनी ही पड़ेगी, किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से लेते हैं, ठीक है, वो सब आपको देख के देन यू हैव टू। अगर आप किसी को कितनी भी अच्छी डाइट दे रहे हैं, उसको कई तरह की प्रॉब्लम, कई लोग प्रोटीन्स बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, कईयों को आप स्पाइसेस बहुत ज्यादा नहीं दोगे, उसको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सम जेनेटिक डिजीजेस आर आल्सो देयर, हालांकि एसिडिटी इतनी दिक्कत वाली नहीं होती है। वही चीजें, वही एक प्रिपेयर्ड फूड आप खाते हो या मैं खाती हूँ, मुझे उससे दिक्कत नहीं आती, किसी और को आती है, बिकॉज फेमिलियल जेनेटिक्स एंड ऑल एवरीथिंग मैटर्स, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स और ऑल्सो मैटर्स, द एम्बियंस या फिर जो टेबल सजाया सबके लिए है। किसी को आप थाली बेड पे भी बैठ करके दे देते हो, टीवी देखते हुए भी खा लेता है, बट किसी को डाइनिंग पे ही चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें आप अपने ख्याल में रखिए, बिकॉज दिस ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज द माइंड सेट ऑल्सो मैटर्स। सम पीपल दे ना ऐसे चिढ़ जाएंगे कि ये दे दिया खाने को, ये कैसे दे दिया, ये ऐसे क्यों डाला, अचार ऐसे क्यों। ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बट हमने इनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दी डाइट एंड द न्यूट्रिशन, ओके। सो बैलेंस डाइट कैसे देनी है, क्यों देनी है, पर्सनलाइज वर्ड का मतलब हमें याद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज पर्सन के लिए ये बातें ना, आपको वैसे हम अगर बात करें क्लिनिकल एंड ऑल, उसमें ये बातें इतनी मैटर नहीं करती, बट वेन एवर यू विल बी हैविंग योर पर्सनल क्लिनिक्स ना, प्राइवेट क्लिनिक्स, वहां पे ऐसे लोग बहुत आते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको छोटी छोटी छोटी, क्योंकि बिकॉज दे आर पेइंग मच, सो वो छोटी छोटी बातों का, ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, यू हैव टू अटेंड, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम बोथ वेज चल रहे हैं, किसको कैसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो हमें डाइट का ख्याल रखना है, कोई चाहे पर्सनल पे आए या प्रोफेशनल या प्राइवेट क्लिनिक्स, वट एवर, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो फूड्स है ना, आपको फूड देखना पड़ेगा, सिलेक्टिंग आइटम्स देखने पड़ेंगे, किसमें कितना है, न्यूट्रिशन कितना है, प्रोटीन का आइटम्स कितना है। जैसे हमने देखा कि प्रोटीन्स अगर ऐड करोगे तो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट्स है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज है, एंड द लिपिड्स दे हैव 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज। तो आपको बोथ थिंग्स ना हैंड इन हैंड चलनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरा क्या था, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फिजिकल एक्टिविटी को हम नहीं भूल सकते हैं। Every individual requires more energies, more calories, who is working aggressively or moderately or average or low है, अगर sedentary lifestyle है, देखो energy level सबको, calories सबको, but depending upon the physical, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर क्लासिफिकेशन लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से कि वो किस रूप में, अब प्रोटीन, पनीर नहीं खाएंगे तो किसी और वे में देना पड़ेगा हमें प्रोटीन, ठीक है। दूध नहीं पिएंगे तो किसी और फॉर्म में हमें देना है, तो देना है वो वाले प्रोटीन जो मिल्क आइटम्स नहीं ले रहे हैं या किसी तरह से। तो ये छोटी चीजें हैं, हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं, हम जस्ट टेलिंग यू वेरी माइन्यूट थिंग्स जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सो एक बैलेंस डाइट जो हमें बनानी है, दैट वुड बी रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स व्हिच इज कॉल्ड द आरडीआईज, ओके। इसकी पहले कुछ और थी, अभी जो है उसमें डाइटरी इनटेक्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कैसे किसमें देते हैं, डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स।
वो भी किसके अकॉर्डिंगली होती हैं, वो भी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली होती हैं, एज के अकॉर्डिंगली होती हैं, और पर केजी बॉडी वेट ही हमें देना पड़ता है अगर किसी को कुछ देना भी है खाने के लिए, ठीक है। तो उन चीजों को आपने क्या देखो, पर केजी बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशंस आल्सो, ठीक है। अब हम अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेल्दी पर्सन्स, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी सी दिक्कत वाला कोई बंदा, इवन थोड़ा लिटिल बिट आ गया आपके पास, क्लिनिकल केस आ गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो उसको उसके हिसाब से, अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने क्लिनिकल के में गए ही नहीं है। So just keep in mind that we are just talking about the clinical, normal cases. We are not talking about the clinical cases, okay? So personal requirement and per kg body weight and the physical activity is must, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। एंड बैलेंस डाइट प्रोवाइड दी पीरियड्स ऑफ द लीननेस। इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस डाइट है ना, वो सेफ्टी मार्जिन और लिटिल एक्स्ट्रा फॉर द टाइम्स यू मीट द न्यूट्रिएंट एडिक्वेटली। इसमें पता क्या है, आप सिर्फ डे टू डे बेसिस पे नहीं खाते हो कि आज की फिजिकल एक्टिविटी आज हमें इतना चाहिए तो उतनी ही रिक्वायर्ड है, नो। आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, सो दैट दैट शुड बी स्टोर्ड। होता ही है, वैसे हम लोग खाते ही हैं, बट ये नॉर्मल उसमें बात हो रही है कि आप इतना खाओगे, उसके लिए एनर्जी कैलोरीज डेली नहीं होती हैं वो, कि आज के लिए इतनी चाहिए थी इतनी है, तो कल सुबह अगर थोड़ा लेट हो गया, सो ऐसे थोड़ा है कि आपके पास बिल्कुल बॉडी के पास, so you should have little bit more so that you can that those calories would be stored in your body if you are starving next day. हो सकता है आपका मील लेट हो जाए, तो you would be having little bit more um, stored calories so that your body can actually depend upon that. If the meal you haven't eaten the meal, or maybe starving है, और due to some conditions miserable, कोई भी condition हो सकती है जिससे मील लेट हो जाता है, और जो भी है, ठीक है। तो उसमें आप उसको ध्यान से अपना जो स्टोर्ड वाला है, तो बॉडी कैन डिपेंड अपॉन दैट। अच्छा, प्लानिंग ऑफ द बैलेंस डाइट क्या होती है? प्लानिंग ऑफ द बैलेंस डाइट में सबसे पहले आपको फूड ग्रुप्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा खा रहे हो, किससे खा रहे हो, उसका क्या होता है कि सबसे पहले आपको सोर्स देखना पड़ेगा, एंड जिस सोर्स से वो आ रहा है उसके बाद जो भी आपको चाहिए उसका आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कि उसने बॉडी में जाके करना क्या है। अब आप देखो कि अगर हम अडोलेसेंस फीमेल्स की बात करें, ग्रोइंग किड्स की बात करें, तो हमें सीधा सीधा पता है कि दे आल्सो रिक्वायर द कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज द किड्स दे आर एक्चुअली इन एक्टिव स्टेट, स्कूल गोइंग है, एक्टिव हैं, ज्यादा प्लेफुल होते हैं, so they require the carbohydrates also, because they required the energy is required for them, okay, because they are उनकी growth and development को भी हमें देखना पड़ता है। so दूसरी बात ये है कि adolescent girls हैं, menstruation cycle है, during those days or without the cycle you have to provide the proteins also for their growth and development also. So carbs and the proteins they are required, so they can have the lipids also. मिनरल्स एंड वाइटामिन का तो हम कर ही नहीं सकते कि इसको हम स्किप कर दें, आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड ही होता है, बिकॉज मिनरल एंड वाइटामिन का वैसे जैसे मैंने पहले बोला कि साइड बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ना, वट एवर यू आर ईटिंग, तो एक बाय प्रोडक्ट्स बनते ही बनते हैं आपकी बॉडी में, तो वो फ्री रेडिकल्स की तरह फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में, और वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो दे आर डिस्टर्बिंग योर बॉडी। सो उसमें क्या होता है कि आपको फिर मल्टीविटामिन्स हैं जो, या मिनरल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनके वेरियस फंक्शंस है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करती हूँ, रिमाइंड करवाती हूँ कि सम ऑफ द मल्टीविटामिन्स दे वर्क एज ए हार्मोन्स टू, ठीक है, बट सम ऑफ द मल्टीविटामिन्स दे वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स टू, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं दे आर आल्सो वर्किंग एज ए कोफैक्टर्स। सो इन दोनों की चीजें हार्मोन्स की तरह, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह, और एक हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स आर आल्सो देयर, ठीक है, और एक एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन भी होता है। सो ये सब जो हमारी बॉडी के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री का बिगनिंग में बताया था कि बायोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। बायो मीन्स द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। अब जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस में देखोगे ना, तो आप साइड कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिवॉल्व होती है, कभी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स इवॉल्व होंगे, कभी H2O2 बनेगी, मतलब एक रिएक्शन है उसमें बाई प्रोडक्ट्स बनते ही बनते हैं, उनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, दे शुड बी गॉन, बट वो जब अंदर ही है सिस्टम के, सो दे विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग द अदर सिस्टम्स, ठीक है। सो विल बी लाइक हैविंग दोज डिस्टर्ब सिस्टम्स को खत्म करने के लिए, मतलब ऐसे जो फ्री रेडिकल्स, इसीलिए उनका नाम फ्री रेडिकल्स है, जो फ्री बनते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उनका काम कोई नहीं है
एंड दे स्टार्ट रोमिंग हियर एंड देयर। अब आप देखोगे अगर H2O2 को देखो, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, दूसरे सिस्टम्स को जाके ऑक्सीडाइज, मतलब बीच में से किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जहां जहां स्ट्राइक करना है। अब अगर हमारे बाय प्रोडक्ट्स में हम खाना खा रहे हैं, रिएक्शन हो गया केमिकल, तो साइड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल निकल गए। उसके पास क्या है कि O2 है, ऊपर 2 नेगेटिव आयंस है, फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट वर्किंग विद अदर रिएक्शंस। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होता है ना, तो वो दूसरे रिएक्शंस को डिस्टर्ब करने लग जाता है, या फिर मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, किसी एंजाइम को जाके डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। मतलब जो जिनको कोई और काम नहीं है ना, तो वो जो साइडों पे काम चल रहे हैं ना, उनको जा जाके डिस्टर्ब करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में व्हाटएवर वी ईट, जो नॉर्मल रिएक्शंस के ही बाय प्रोडक्ट्स साइड में बनते हैं, सो दे आर कॉल्ड द फ्री। हम इनको कुछ नहीं कर सकते, ये बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पर कई बार क्या कहते हैं, हम खाना खाते हैं, देखो आप, दैट्स ऑल्सो, अब एक और चीज मैं लिंक करती हूँ, सात्विक, राजसिक एंड जो तामसिक फूड होते हैं। सो इसी पे डिपेंड करता है। जो सात्विक फूड खाओगे उसमें ये चीजें कम बनेंगी, फ्री रेडिकल्स। राजसिक खाओगे ज्यादा बनेगी, तामसिक खाओगे बहुत ही ज्यादा बनेगी, ठीक है। पीएच भी चेंज हो जाएगी उससे। सो ये चीजें जो हैं, ये आपके खाने पे डिपेंड करती हैं कि टाइप ऑफ द फूड यू ईट, एंड वो आपकी बॉडी की कितनी पीएच को फर्क कर रहा है, ठीक है, उसको कितना डिफरेंट है। दैट कैन कॉज द डिफरेंस इन द पीएच, जो एसिडिक कर रहा है या एक्सट्रीम एल्कलाइन जा रहा है। सो दैट शुड बी इन अ रेंज, सो दैट योर एंजाइम्स which are working as a digestive enzymes, so they can also work। ये नहीं है कि एक बार खाना खाया उसने आपकी बॉडी का सारा पीएच खराब कर दिया, एसिडिक कंडीशंस होगी, फ्री रेडिकल्स इतने बन गए, एंड देन अगेन व्हेनेवर यू हैव द फूड, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, उससे फिर फ्लैचुलेंस एंड ऑल ये सारी चीजें आती हैं। क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट्स जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये बनने हैं हमारी बॉडी में। लेकिन इनके लिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी डोंट टेक मल्टीविटामिन, समटाइम्स वी डोंट टेक द मिनरल्स एंड ऑल, है ना, समटाइम्स वी डोंट टेक मच ऑफ वाटर, तो टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होते हैं और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में कम बने हैं, तो वो टेक केयर नहीं हो पाता, जो फ्री रेडिकल्स बने हैं उनको न्यूट्रलाइज ही नहीं हो पाते हैं, और आपकी बॉडी का एंजाइम है, क्योंकि पीएच इम्बैलेंस है, तो आपकी बॉडी का एंजाइमेटिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सिस्टम है जो इनको न्यूट्रलाइज करता है। हमारी बॉडी जो है दैट्स वेरी एक्यूरेट, ठीक है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि आपको, अगर आप अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो यू कैन एक्चुअली लिंक ऑल दोज थिंग्स। सो आपको अगले चैप्टर भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपकी बॉडी में बाय प्रोडक्ट्स बनने ही बनने हैं, और आपकी बॉडी में एक टाइम का जब आपने खाना खाया, एंड देन दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द डाइजेस्ट हो गया, बट बाय प्रोडक्ट्स बने ही बने हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा बन गए हैं। सो सपोज उससे थोड़ी एसिडिटी भी हो गई, एक बार तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके एंजाइम्स, एसिडिटी हो गई है अब खाना खाने से, और फ्री रेडिकल्स भी हैं अब, तो वो नेक्स्ट टाइम जब व्हेनेवर यू विल बी हैविंग दैट फूड, तो उसके भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, उससे भी एसिडिटी। क्योंकि आप जो टाइप ऑफ फूड खाते हो ना, जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, सेम काइंड ऑफ अ फूड यूज्ड टू हैव एनी पर्सन। जैसे मैं हूँ अब, मुझे जैसी सी चीजें खाती हूँ, मैं वैसा सही खाना खाती हूँ। एक बार वो अगर खा लिया, तो वैसे सा ही खाना है, तो अगली अगली बार, तो हर बार खाना खाने से आप जिस तरह का खाना खाते हो, आपका सिस्टम वैसा सा बन जाता है। और क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिडिटी रहनी शुरू हो जाती है, एंजाइम्स दे डोंट वर्क मच, डिपेंड्स अपॉन द फूड। मैं बात कर रही हूँ राजसी तामसिक फूड की। सात्विक खाते हो उनमें नहीं होगा, उनमें उल्टा जो चीजें खराब हुई थी, देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग ऑल दोस थिंग्स। एंड देन यू हैव टू हैव जो आपका मल्टीविटामिन है, यू हैव टू बी, आपका वो होगा ही होगा, ठीक है। आप उसको, वो सब होगा ही होगा मल्टीविटामिन के साथ न्यूट्रलाइज। सपोज अब विटामिन ई लिया, ठीक है, सी लिया, तो विटामिन ई जो है वो जहां जहां पे लिपिडिक सिस्टम है, वहां पे अगर कुछ खराबी हो रही है, फ्री रेडिकल्स मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो विटामिन ई वुड बी देयर, सो दैट कैन सेव दैट मेम्ब्रेन फ्रॉम दैट फ्री रेडिकल्स एंड ऑल, ठीक है। एंड इफ देयर वुड बी विटामिन सी, तो जहाँ पे वाटर सॉल्युबल सिस्टम में जहाँ पे भी जो हो रहा है, सो दे कैन एक्चुअली, so that's why we have both kind of, we have antioxidant enzymes also, we have a glutathione also, which is a which reduce the oxidative stress, ठीक है, जो फ्री रेडिकल से होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। एंड we have to take the multivitamins in the food too, ठीक है। तो फूड से जो मल्टीविटामिन आते हैं, सो बहुत सारे, और हर तरह का मल्टीविटामिन है हमारे पास, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है, लिपिडिक सॉल्युबल भी है एंड वाटर सॉल्युबल भी है। सो अब आप सोचो
कि अगर हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है, खुद का भी और जो हम फूड में से लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो चीजें खराब होती नहीं, क्योंकि अगर आपका फूड है जो जो फ्री रेडिकल्स है ना, वो जा जाके मेम्ब्रेन को कहीं कहीं खराब करते हैं, तो उसी से डायबिटीज, उसी से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उसी से ही कैंसर तक की डिजीजेस होती हैं। अगर उन चीजों को आप कंट्रोल कर लोगे, सो यू विल बी सेव्ड बाय दोस, मतलब अगेंस्ट दोस डिजीजेस। आपको वो ये बीमारियां नहीं हो सकती अगर आप खाना ठीक से खाते हो। ये आप कौन से मैम फूड होते हैं जो मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते हैं? मल्टीविटामिन्स के आप सोर्सेज देखिए। अब जैसे अगर आप बात करते हो सी की, तो सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। ई की बात करोगे तो वो भी बहुत सारे, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं, ये तो आपको सोर्सेज देख के रखने पड़ेंगे। वी कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ द लिस्ट, कितनी तरह के फूड्स हैं। वही मैंने आपको कहा था, देखो कॉमन कॉमन फूड्स जो होते हैं उसमें सब पता होता है हमें, है ना। बट काफी सारे फूड्स ऐसे आजकल डिस्कवर होते हैं कि अच्छा उस फूड से, अब जैसे एवोकाडो है, वो HDL देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमें ये लर्न करना पड़ता है, और समटाइम्स वी learn with time, okay this food is rich in calcium, okay कोकोनट में इतना पोटेशियम होता है, ओके दैट्स गुड, ऐसे, ठीक है। सो ये विद टाइम आपकी लिस्ट लंबी होती जाती है, ठीक है। इज देयर एनी लिस्ट मैडम? इसका कुछ है हमारे पास कुछ? इंटरनेट भरा पड़ा है, हमारी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है, किसी चैप्टर में होगा, बट DNHE में ऐसा कुछ नहीं है, बट इंटरनेट भरा पड़ा है। वी कैन लर्न व्हेन वी हैव टू लर्न। आपको ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना, सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेस तो ओके है, लर्न करना ही पड़ेगा, बट एक बार आपने मतलब आई थिंक फर्स्ट सेशन में यू टोल्ड के कौन सा फूड कितनी कैलोरीज देता है, वो आप एक कुछ रखने वाले थे। हाँ हाँ, वो मेरे पास है, मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। आई विल बी गिविंग यू ये सोर्सेज एंड कैलोरीज एंड एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, ये सब, ठीक है। एक्चुअली आई वाज वर्किंग एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट ना, आज दिस डेज एग्जाम्स एंड आई एम बिजी लाइक हेल। तो एग्जाम करवाना 700-800 बच्चे का, आप समझ रहे हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर मच, सो वी शुड कंसंट्रेट। आई विल बी गिविंग इट यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके, एंड आई विल बी गिविंग यू जो मेरे पास मटेरियल है, आई कैन गिव यू, ठीक है। सो थोड़ा सा हो जाती हैं चीजें इधर उधर, बट आई विल बी गिविंग यू, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप अपने आप को सेंसिटाइज इस तरह से कीजिए कि पर्सनलाइज्ड फूड लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, और सबका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है। समटाइम्स ना आप किसी का थोड़ा अमाउंट डाइजेस्ट कर पाते हैं, कोई ज्यादा। कईयों को मैंने देखा है, दे कैन नॉट हैव मच ऑफ द विटामिन सी, they cannot have a big, so I mean, like me, I can have a big glass of a vitamin C, but one of my friend, she cannot just have, she can have little bit, उसको गला ही खराब हो जाता है। Okay, so these are some kind of the problems they cannot just have a much amount of the vitamin C, so आपको वो चीजें भी देखनी है। तो फूड प्लानिंग ऑफ फूड इज नॉट दैट इजी, ठीक है। आप चिप करके अपना दे दोगे एंटीऑक्सीडेंट, इसको विटामिन सी दीजिए, इतना ग्लास जूस पीजिए, बट उसको डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो पर्सनलाइज्ड वर्ड को आप हमेशा याद रखिए। जो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, सो दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड। आपको पर्सन की पहले एलर्जीज, कोई चीज उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, एंड देन यू कैन हैव। सो अभी तो हम नॉर्मल लोगों की बैलेंस डाइट को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हेनेवर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस, सो मैं साथ साथ में ही क्लिनिकल का थोड़ा सा आइडिया आपको दे रही हूँ, क्योंकि सिर्फ अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे आसपास सब लोग नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और कईयों को एलर्जीज हैं। अगर बहुत लंबा चौड़ा कोई क्लिनिकल केस नहीं है, डायबिटिक नहीं है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या कैंसर या बहुत सारी डिजीजेस, ऐसा नहीं है, बट लिटिल बिट एलर्जीज तो है लोगों को, और या अपनी पर्सनल कैपेसिटी है। आप कई लोगों को देखो, सो नाउ दीज डेज वी डिस्कस कि हमें 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए, पर सबको नहीं ले सकते हैं। कई 2 लीटर के बाद ज्यादा पानी ले ही नहीं पाते, 3 लीटर्स भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। 4-5 लीटर पानी दे कैन नॉट हैव इट, बिकॉज वो ले ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो लेना चाहिए अलग बात है, कितना ले पाते हैं वो एक अलग बात, ठीक है। लेकिन हमें सबको करना ठीक है, सबको बैलेंस्ड फूड प्रोवाइड करना है, प्रोटीन्स भी और लिपिड्स भी, कार्ब्स भी, सब कुछ बैलेंस है। लिपिड्स को वी शुड अवॉइड लिटिल बिट, बट 100% जीरो करना भी गलत बात है, ठीक है। सो वी कैन नॉट जस्ट बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें फॉर द नॉर्मल पर्सन, वी कैन नॉट मेक एनीथिंग जीरो। बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल केस है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्लिनिकल केस, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, डायबिटीज है, सो वी हैव टू अवॉइड लिपिड्स एंड कार्ब्स, ओके। सो वी कैन गिव द प्रोटीन्स दैट टू, देख के कि कोई किडनी की कोई प्रॉब्लम। सो क्लिनिकल केसेस अलग चीज है, नॉर्मल केसेस अलग चीज है, ठीक है। सो अभी हम नॉर्मल केसेस डिस्कस कर रहे हैं, पर साथ साथ मैं आपको समझा रही हूँ सो दैट आपके माइंड में आ जाए दैट
कि पर्सनलाइज हमें करना है, बट किसके लिए, ठीक है। सो तो नाउ क्लासिफिकेशन जो है दो तरह की है ऑफ फूड ग्रुप्स की। एक तो बेसिस है किसकी, सोर्स के बेसिस पे, दूसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के ऊपर, कि पहले सोर्सेज है कि किससे हमें क्या मिलता है। सपोज अब सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है, एक पर्सन है जिसमें क्या है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सर्टेन फूड आइटम्स इन टर्म्स ऑफ द सिमिलर सोर्सेज। अब सिमिलर सोर्सेज क्या है कि या तो सीरियल्स एंड मिलेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, और पल्सेस की कैटेगरीज में, या फिर नट्स एंड ऑयल सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आ गए, रूट वेजिटेबल्स हो गए, या फिर अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, या फिर फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, शुगर एंड जैगरी, fats and oils, flesh foods, eggs, and condiments and spices. So all these are kind of a different categories. Okay, sources की basis पे. Now we can actually summarize the major supplied these food groups के basis पे. जैसे अब food group अगर हम cereal and millets की बात करेंगे, तो हमारे पास उसके सोर्सेज पता कैसे हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, रागी, ज्वार। और इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, इसमें न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ना कार्ब्स होंगे एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब जहाँ कार्ब ज्यादा होंगे ना तो वहां पे ज्यादा प्रोटीन्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको पल्सेस के साथ ग्रुप कर देंगे तो फिर प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे सीरियल्स एंड मिलेट्स हैं, मेजरली क्या होगा, हमें कार्ब्स मिलेंगे। बट अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा कि प्रोटीन कंटेंट भी आ जाएगा साथ में, और विटामिन बी जैसे स्पेशली नियासिन, एंथायमिन, आयरन बाजरा से मिल जाएगा हमें, क्योंकि मिलेट्स की बात कर रहे हैं हम। सो कैल्शियम भी मिल जाएगा रागी से, कैरोटीन मिल जाएगा हमें येलो मेज से, अगर हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह के कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं। हाँ भाई, हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं फूड ग्रुप्स की। सो अगर नेक्स्ट फूड ग्रुप हम बात करें विच इज कॉल्ड पल्सेस, ठीक है, तो क्या होगा कि रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, बंगाल ग्राम। तो इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, इसमें प्रोटीन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो गुड क्वालिटी, बट जैसे अब इम्प्रूव द कॉम्बिनेशन विद द सीरियल्स, अगर आपको फिर से गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन्स को डिस्कस करना है तो क्या होगा कि हम इनको कंबाइन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि अगर हम कंबाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मल्टीविटामिन बी या थायमिन, नियासिन उसके साथ, जैसे ऊपर वाले सीरियल्स एंड मिलेट्स के साथ पल्सेस को कंबाइन कर दो, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या देना और कितना देना है। देन वी हैव टू, एंड देन नट्स एंड ऑयल सीड्स में क्या है, प्रोटीन बी कम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा है। नट्स में क्या, ग्राउंड नट, आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स, सेसमे सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, ये सब। इसमें क्या मिलेगा आपको, बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स, दे यू कैन हैव इट। सो अगर आपको इसके साथ प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कंबाइन पल्सेस को करना पड़ेगा। और अगर आपको कार्ब्स चाहिए तो सीरियल्स एंड मिलेट्स आल्सो यू कैन कंबाइन। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम बात करें तो हम कौन सी खाते हैं, एमरंथ हो गया, स्पिनच है, फेनुग्रीक लीव्स है, मस्टर्ड लीव्स है, साग खाते हैं, पालक की सब्जी खाते हैं। देन वी हैव, है ना, एंड देन उसमें क्या होता है कि कैल्शियम, आयरन, कैरोटीन, क्योंकि ग्रीन ऑरेंज लीव्स में क्या है, स्पिनच में आयरन बहुत होता है, ठीक है। गाजर खाएंगे, फेनुग्रीक खाएंगे, कैरोटीन है, विटामिन सी, बी, ठीक है, एमरंथ। तो राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड इन चीजों में ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रीन, ऑरेंज, रेड इनमें राइबोफ्लेविन बहुत होता है, ठीक है। अब रूट वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो हमारे पास पोटैटो, स्वीट पोटैटो मेनली, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे बिकॉज ये रेड येलो होंगे, तो इसमें कैरोटीन भी होगा, विटामिन सी भी हो सकता है पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, ठीक है। एंड अदर वेजिटेबल्स में क्या है, फिर आ जाते हैं ब्रिंजल, लेडी फिंगर, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर एंड ऑल। तो इसमें क्या है कि सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स या विटामिन प्रोवाइड हो जाते हैं हमें, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट सोर्सेज से हमें गुआवा, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स हैं, कैरोटीन मिलेगा मैंगो से, ऑरेंजेस, पपाया, ठीक है। एंड आयरन हमें ड्राइड फ्रूट सच एज डेट्स, रेजिन से मिलेगा अगर ड्राई करेंगे। अब मिल्क प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट बेसिकली कर्ड, मिल्क, चीज, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज, कॉटेज चीज और डिफरेंट काइंड ऑफ चीजेस, ठीक है। सो द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, ये सारी चीजें। शुगर एंड जैगरी से हमें मेनली कार्ब्स ही मिलेंगे। फैट्स एंड ऑयल जो है, घी, बटर, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, any kind of oil. So we have a fats basically. But sometimes retinol from the butter or vanaspati oil से, and vitamin D also, ठीक है, So butter से। what is retinol, madam? Sorry to interrupt. Retinol क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए आईज के लिए ये मिलता है। ऑरेंजेस कलर्ड जो होती है ना, जैसे ऑरेंज कलर गाजर हो गई है,
पंपकिन हो गया और येलोइश कलर, जो ये कलर्ड होती है ना, उनमें से रेटिनॉल बहुत है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आईज, ठीक है। सो एग्स से हमें मिलेगा रिच सोर्स ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स, एग से प्रोटीन ज्यादा, ठीक है। और कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस भी हम अपनी ऐड करते हैं जब हम व्हेन वी एक्चुअली ऐड, तो कैरोटीन जब हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करते हैं, विटामिन सी जब हम ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज हमारी इस तरह से ऐड होती हैं व्हेनेवर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ओके। सो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से मिलती हैं। सो हम एक चीज नहीं खाते हैं, अगर हम ग्रीन चिली भी खा रहे हैं देन ऑल्सो वी हैव, थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर रहे हैं देन ऑल्सो वी हैव, समटाइम्स वी स्प्रिंकल करते हैं फेनुग्रीक, ग्रीन फेनुग्रीक विंटर्स में बहुत होती है, स्पिनच एंड साग खाते हैं, बाथू खाते हैं, चुलाई खाते हैं। सो ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ द रिच आयरन एंड कैल्शियम टू एंड द कैरोटीन ऑल्सो, ठीक है, दैट्स ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से मिलता है, सो दैट्स व्हाई वी प्लान एज ए, बट जब पता क्या है, जब आप फूड प्लान करते हो ना, तो ये इतनी छोटी जॉब नहीं है, इट्स अ माइंड बॉगलिंग जॉब किसी के लिए भी प्लान करना, बिकॉज आप एक दिन में पहले तो कैलोरी, पहले उसकी फिजिकल एक्टिविटी देखो, पहले एज देखोगे, बॉडी वेट देखोगे, फिर फिजिकल एक्टिविटीज देखोगे, फिर वो कितनी कैलोरीज लेता है, फिर उसको क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है, और कितनी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उसको क्या चाहिए, और किस तरह का फूड लाइकिंग डिसलाइकिंग है, फिर आपको फ्री रेडिकल्स भी देखने पड़ते हैं, फिर एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट दोगे, फिर प्रोटीन्स का दोगे, कार्ब्स का दोगे, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली कितना डाइजेस्ट करेगा, फिर टाइमिंग सेट करोगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सेट करोगे, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट इजी जॉब फॉर प्लानिंग इवन द बैलेंस डाइट। अब आप क्लिनिकल केसेस देख लो कि कितने डिफिकल्ट होते होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस, हाँ जी पल्लवी जी, हाँ जी। मैम, ये जब हम फूड प्लान करते हैं किसी के भी लिए, तो क्या हमें ये प्रकृति भी देखनी होती है उनकी, जैसे कि किसी की कफ प्रकृति होती है, वात प्रकृति होती है, या बिल्कुल पित्त की प्रकृति है, बिल्कुल, तो वो क्योंकि कैसे अगर पता चलेगा हमें कि किसकी क्या प्रकृति है? वो आपको आपको उसकी हिस्ट्री देखनी होती है ना, समटाइम्स उसके बायोकेमिकल टेस्ट भी करवाते हो, समटाइम्स आप बायोकेमिकल टेस्टिंग अभी रिसेंट हुई है, देन ऑल्सो लाइकिंग डिसलाइकिंग उसकी बात करके आप देखते हो कि क्या खाने से उसको क्या होता है। मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड स्टार्ट हैविंग कफ व्हेनेवर शी वुड बी हैविंग विटामिन सी, उसको थोड़ा जूस लेगी, पूरा गिलास पी लिया तो देन शी विल बी स्टार्ट कफिंग, उसको एलर्जी है, गले को लग जाता है, ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट एक्चुअली इरिटेट्स हर थ्रोट। सो ये चीजें भी, अब विटामिन सी से भी होता है, थोड़ा खटास होती है, तो आपको थोड़ा मीठा डाल के या मीठे के साथ लेना है, क्योंकि विटामिन सी तो लेना ही है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब वायु वाली जो आप बात कर रहे हैं, वायु का मतलब होता है गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपको एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, ठीक है ना। तो दे हैव अ फ्लैचुलेंस काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ चीजों से उनको होती है, तभी तो मैंने जो वर्ड बोला ना, पर्सनलाइज्ड लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, एलर्जीज, ये सारी चीजें। फिर अभी तो हम डिस्कस करेंगे, अगर ज्यादा डिटेल में जाओ तो कुकिंग मेथड्स में भी आना पड़ता है। कई लोगों को ऑयल ही नहीं सूट करता। अब ग्राउंड नट ऑयल में बनाओगे दे कैन नॉट जस्ट हैव इट, मस्टर्ड ऑयल में बनाओगे दे कैन नॉट जस्ट हैव इट, सम पर्संस दे विल eat only that kind of a food which would be cooked in a olive oil only, they have a good amount of the butter only, उनकी लाइकिंग है। तो फिर आप अगर वो बटर लेने से हट नहीं रहे हैं तो आपको थोड़ी कैलोरीज कहीं और से कम करनी पड़ेंगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। अगर बीच में चीट डेज भी लेने शुरू कर देते हैं लोग, अगर आप डाइट देते हो किसी को, सो अभी तो मैं वही कह रही हूँ ना, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बैलेंस डाइट। इफ विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्पोर्ट्स पर्संस, इफ विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्लिनिकल केसेस, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो पर्सनलाइज्ड लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल के लिए आपको डिफरेंट, हाँ काफी आप दे सकते हो कॉमनली, जैसे अभी इस ग्रुप में है 10 से 15 साल के लिए आपको एक देना, बिकॉज दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, ठीक है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सारी जब कोई क्लिनिकल केस नहीं है, इक्वली एक्टिव है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनको क्या चाहिए, और सिमिलरली दे कैन हैव इट। और समटाइम्स यू कैन बोल्ड कि नहीं 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 नहीं, इसको माइंडसेट भी आपको चेंज करना पड़ता है कि नहीं, अगर आप ऐसे लोगे तो देन यू विल बी हैविंग गुड। सो थोड़ा सा माइंडसेट भी करना पड़ता है, आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि आपको ये खाना है, दिस इज अ गुड वन। समटाइम्स लोग खा लेते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है, चेंज भी हो जाते हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, बट समटाइम्स वो बिल्कुल ही रिटेलिएट कर जाते हैं कि नहीं हम तो इसको खा ही नहीं सकते, देन यू हैव टू सी, ठीक है, ये सारी चीजें। सो अब है एक हमने ये क्लासिफिकेशन की है फूड ग्रुप्स के ऊपर पे, अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन।
अब फंक्शन ना 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह के। हर फंक्शन क्या करता है, या तो एनर्जी गिविंग फूड होंगे, या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड होंगे, और एक किस तरह के होंगे, प्रोटेक्टिव एंड द रेगुलेटरी फूड्स। एनर्जी गिविंग में क्या है कि सीधा सीधा आपको कैलोरी प्रोवाइड करेंगे एंड यू विल बी फीलिंग सो गुड ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, स्टेमिना बिल्डिंग। इन सम टाइम्स क्या होंगे कि बॉडी बिल्डिंग, इसमें बेसिकली प्रोटीन्स आते हैं जो आपके मसल बिल्डिंग में काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, आपकी वियर टियर को भी काम करते हैं। एंड समटाइम्स द फूड्स दे आर कमिंग इनटू द प्रोटेक्टिव एंड द रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी को हम ना ज्यादातर प्रोफाइलेक्टिक काइंड ऑफ फूड भी कहते हैं। अब प्रोफाइलेक्टिक क्या होते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरापेटिक वर्ड में फर्क है। प्रोफाइलेक्टिक, PROPHYLACTIC, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक फूड्स क्या होते हैं, जो व्हेनेवर, जैसे आप मल्टीविटामिन्स खाते हो, ठीक है, आप अपने आप को पहले कि अगर हम ये खाते हैं ना, हम ये खाते रहेंगे तो हमें कोई डिजीज होगी नहीं, ठीक है, बिफोर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव कि आप जैसे विंटर्स में है, सर्दी लगने से पहले आप कुछ ऐसी पंजीरियां, व्हाटएवर द पिनिया काइंड ऑफ और सम स्पेसिफिक चीजें आप खाते हो, तो वो प्रोफाइलेक्टिक होता है कि सर्दियों में ठंड ना लग जाए, आपको जुकाम ना हो जाए, सो दैट यू कैन हैव दोस काइंड ऑफ फूड्स, मल्टीविटामिन, एनर्जी टेकिंग, इस तरह के फूड्स आपकी बॉडी को गर्म रखें, ठंड लगने से बचाएं। सो दोस काइंड ऑफ फूड्स दे आर कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक। सम काइंड ऑफ द थेरापेटिक, थेरापेटिक क्या होता है कि जब कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद, पहले आपको बीमारी हुई नहीं है, आप प्रिवेंशन के बेसिस पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेके जब कोई खाते हो अपने आप को सेव करने के लिए, प्रोटीन्स खाते हो कि बॉडी में अच्छी एनर्जी रहे, कार्ब्स लेते हो, एनर्जी टेकिंग फूड्स लेते हो, सो दैट यू शुड बी हैविंग अ गुड स्टेमिना, सो दैट यू कैन फाइट विद द डिजीजेस इफ एनी डिजीज एनकाउंटर्स। अब जैसे कोविड आया था, लोगों को क्या बोला गया कि अल्कलाइन वाटर पियो, तो नहीं होगा, ठीक है, दैट वाज अ प्रोफाइलेक्टिक। एंड दूसरी बात ये थी कि इम्यूनिटी बूस्टर्स लो, इम्यूनिटी इंप्रूव करो तो नहीं होगा। सो दोज आर इम्यूनिटी बूस्टर्स जो होते हैं ना, दे आर परफेक्ट प्रोफाइलेक्टिक काइंड ऑफ अ फूड, ठीक है, दिस दोज काइंड ऑफ। सो अब अगर आप ये कहोगे कि थेरापेटिक तो क्लिनिकल केस होता है, जब डिजीज हो गई फिर उसके बाद जब आप मेडिसिन के साथ भी कुछ फूड लेते हो, ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग, बॉडी एनर्जी गिविंग, सब तरह के फूड होते हैं। सो 3 काइंड ऑफ फूड, एक तो मेयरली एनर्जी गिविंग होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं मेयरली बॉडी बिल्डिंग, तीसरे क्या होते हैं रेगुलेटरी, जो आपको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटरी में मल्टीविटामिन भी आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट काइंड ऑफ फूड्स भी आते हैं, जो ऐसे ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो आपको फ्री रेडिकल से और आपकी बॉडी को बीमारियां लगने से बचाते हैं, और जो एसिडिटी है उससे बचाते हैं, और आपके जो फ्री रेडिकल्स ऑब्वियसली जो बनते हैं बॉडी में, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। सो दोस काइंड ऑफ फूड्स दे आर, सो वी हैव अ 3 काइंड ऑफ फूड। आप अगर अपने एनर्जी गिविंग कैटेगरी की फूड्स की बात कर रही है, तो उसमें सबसे पहले ना वो फर्दर दे आर कन्वर्टेड इनटू द 3 काइंड ऑफ फूड्स। फर्स्ट कैटेगरी देखो, सबसे पहले क्या था, क्लासिफिकेशन आपकी बेसिस पे किस पे थी, आपकी फूड ग्रुप्स की, टाइप ऑफ फूड सोर्स के बेसिस पे। सेकंड कैटेगरी की क्लासिफिकेशन थी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस। तो फंक्शंस कितनी तरह के थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर फंक्शंस। फर्स्ट नंबर 1 इज एनर्जी गिविंग, नंबर 2 इज अ बॉडी बिल्डिंग, नंबर 3 इज प्रोटेक्टिव और द रेगुलेटरी काइंड ऑफ फूड्स। अब अगर हम इसमें फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे एनर्जी गिविंग की, सो तो फर्दर देयर आर फर्दर 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ द फूड्स, ओके। सो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट फूड, जो ए कैटेगरी में आता है। इसमें पता कौन से आते हैं, सीरियल्स एंड रूट एंड ट्यूबर्स, ये ज्यादातर सीरियल्स और रूट बेस्ड और ट्यूबर बेस्ड जो थे सोर्सेज वाले फूड्स, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी बी में आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं, ठीक है, वो आते हैं शुगर एंड जेगरीज। ये सीधे सीधे कार्ब्स होते हैं, जो मीठे हैं, जो चीनी खाते हैं, शुगर खाते हैं, जेगरी खाते हैं, सीधा सीधा ब्राउनीज, केक्स, ये ऐसी सी फूड, उसमें से भी हमें कार्ब्स ही मिलेंगे। ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट बी कैटेगरी टाइप ऑफ फूड्स जो देते हैं हमें कार्ब्स। और ए वाले होते हैं सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, वो जो नेचुरल होते हैं, उससे भी हमें कार्ब्स ही मिलते हैं। दे आर सोर्सेज ऑफ द। सॉरी टू इंटरप्ट, ट्यूबर्स मतलब क्या मैम, व्हाट इज ट्यूबर्स? पोटैटोज। अच्छा, ओके। जो इस तरह के फूड होते हैं, गोल मटोल टाइप्स कार्ब्स, गोल मटोल, गोल स्वीट पोटैटोज, ठीक है। हाँ जी And, मैम, हाँ जी मैम, सीरियल्स भी। आपने रेटिनोल मतलब कि विटामिन ए है, तो कैरोटीन मतलब क्या है?
दिस इज ऑल्सो वाइटामिन, मल्टीविटामिन। ओके ओके। हाँ ये जी नाम है, ये नाम है इनके, ठीक है, हाँ जी थैंक यू। विच इज रिक्वायर्ड। आपको ये याद करने पड़ेंगे, इनके सोर्सेज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके और ओके। दूसरी बात, हमारे पास ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। अब फैट रिच फूड्स में क्या आएगा, फैट भी तो एनर्जी गिविंग होते हैं ना, तो उसमें फैट्स एंड ऑयल्स उनमें से हमें मिलता है, ठीक है। अब नाउ द सेकंड कैटेगरी है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग, अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है ना कि बॉडी बिल्डिंग किससे होती है। अगर आप जिम्स की बात करें किसी की, तो ऑब्वियसली प्रोटीन, अमाइनो एसिड जिससे हमें मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फिश एग मतलब मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स मतलब एनिमल प्रोटीन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोटीन्स, फिश से भी एनिमल प्रोटीन्स हो गए, एग से भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, पल्सेस, सम काइंड ऑफ द पल्सेस एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स जब हम खाते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज कैटेगरीज विच प्रोवाइड द बॉडी बिल्डिंग, एंड बॉडी बिल्डिंग वाले फूड कौन से होते हैं, बेसिकली दे आर रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है। एंड थर्ड काइंड ऑफ द कैटेगरी अब आती है हमारे जो प्रोटेक्टिव हो गई, ठीक है। सो द प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ अ फूड, अच्छा फिर इसमें भी और तरह के फूड्स आते हैं। देखो बॉडी बिल्डिंग में भी क्या आएंगे, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, एक शुगर एंड कार्ब्स भी आएंगे, एनर्जी गिविंग है, प्रोटेक्टिव हो गए, ठीक है। तो अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आ गई, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स भी आ गई, पंपकिन वगैरह, ठीक है। सो यस, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या आ गए, ऑल्टरनेट ये आ गए अनियन, बीन्स, टोमेटोज, ठीक है। अगर इनकी जगह कैरेट, अनियन, टोमेटोज, इस तरह के। सो तो अगर ऑल्टरनेट्स लेने हैं ना, अब देखो प्रोटेक्टिव फूड में अगर आप ऑल्टरनेट 1 है, अनियन लोगे, क्वर्सेटीन होता है, बीन्स में भी होता है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है। अब आप ये सोचोगे, अब देखो ये बातें ना, ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट ये भी हमें विद टाइम ही आए हैं कि किसमें क्या है। टोमेटो में लाइकोपीन होता है, दैट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो क्या हो गया, रेगुलेटरी। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और जो आपकी बॉडी में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और लाइकोपीन इज आल्सो वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन टोमेटो। अब अनियन में क्या होता है, क्वर्सेटीन होता है, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट व्हिच कैन आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किससे होती है, फ्री रेडिकल्स के साथ होती है, ठीक है। सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, आई मीन एक क्वेश्चन पूछना था। कैरोटीनॉइड्स एंड लाइकोपीन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्ट के लिए, हार्ट फंक्शनिंग के अंदर। यस, करते हैं, ओके, करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। मतलब लाइकोपीन एंड कैरोटीनॉइड्स दोनों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हार्ट के लिए निकालने में, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज में भी काम करेंगे, आर्थराइटिस में भी काम करेंगे। जिन जिन डिजीजेस का बेस जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स बनने से होती हैं, या डिजीज होने के बाद भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। देखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है तो डिजीज होती है, लेकिन डिजीज हो गई है, फिर आप मेडिसिन लेते हो, उससे और भी होती है। सो आपको हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में, लाइकोपीन लो, क्वर्सेटीन लो, विटामिन सी लो, ई लो, बिकॉज दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन डी इज आल्सो अ काइंड ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ई है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। प्रोबायोएक्टिव्स जो आपकी बात करते हो ना, प्रोबायोस, बायोएक्टिव्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्रोबायोटिक इज नहीं, प्रोबायोटिक एक को आप कंफ्यूज मत कीजिए। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक्स दे आर दी आई मीन एसेंशियल हमारे माइक्रोफ्लोरा को भी करते हैं। जैसे आप प्रोबायोटिक, अब आप उसको भी तो कहते हैं ना, याकुल्ट लेते हो आप, याकुल्ट नहीं लेते हो, सो दैट्स अ माइक्रोफ्लोरा। जब आपकी बॉडी का काम नहीं करता है तो लैक्टोबैसिलस होता है, तो आप वो एक्स्ट्रा ले लेते हो, because this is very much required for the digestion also in the stomach, ठीक है। तो वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स तो आजकल आइसक्रीम्स में, बड़ी सारी चीजों में, केक्स में, पता नहीं किस किस में डलते हैं, सो दैट अगर आप लो तो आपका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हेल्पफुल हो, और आपका उसमें डले हुए होते हैं, देन यू कैन हैव इट। तो आपकी बायो एक्टिव एंड प्रोबायोटिक्स डिफरेंट है। बायो एक्टिव्स कौन से होते हैं, जो आपके मल्टीविटामिन्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रोबायोटिक इज अ डिफरेंट वन, जो याकुल्ट है, या हम माइक्रोफ्लोरा लेते हैं बाहर से, या लैक्जेड की, जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, लैक्जेड, लैक्टोबैसिलस साथ में देते हैं, क्योंकि आपका नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा भी डेड हो जाता है, ठीक है। ओके,
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं। आप जितना पढ़ोगे ना, ये मत सोचो न्यूट्रिशन हैज अ लॉट टू रीड, ठीक है, कुछ खत्म नहीं है इसमें, जितना पढ़ते रहोगे उतने सोर्सेज मिलेंगे। इवन टिल डेट मैं इतने सालों से पढ़ती आ रही हूँ, आई एम इनटू न्यूट्रिशन, एमएससी करवाती हूँ, थीसिस है, सब कुछ है, बट स्टिल मैं अब लर्न करती, अच्छा इसमें ये होता है, इतने अमाउंट में ये होता है, अच्छा दिस फ्रूट इज रिच इन दिस। कभी किसी और कंट्री में ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बाहर से आता, कोई इधर से आता, मतलब आपको पता ही नहीं है। अगर आप किसी तरह से इस चीज को बनाओगे तो उसमें ये हो जाता है, अच्छा इसमें ये रिच हो गया, इसके कुकिंग मेथड में ये डेड हो गया इसका, ठीक है। कुकिंग मेथड से भी तो डिस्ट्रॉय होती हैं। कई बातें होती हैं कि कुकिंग मेथड में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में करते हो तो आपको बड़ी एनर्जी। सो ये चीजें आपको लर्न करने के लिए देयर इज नो एंड, कोई एंड नहीं है। जितना पढ़ते जाओगे उतना सीखते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे उतना सीखते जाओगे, ठीक है। सो अब ना अल्टरनेट में फिर क्या लेना होता है। अब जब जैसे ये फूड आइटम्स हैं, अगर आपने रेगुलेटरी फूड्स में सॉरी एनर्जी गिविंग फूड में आप क्या खाते हो, राइस एंड फैट लेते हो। अगर राइस एंड फैट नहीं है तो आप उसकी जगह अल्टरनेट क्या लोगे, सेम सोर्सेज के लिए व्हीट, फैट, शुगर, पोटैटोस। अगर बॉडी बिल्डिंग में आप राजमा खा रहे थे ना, क्योंकि प्रोटीन रिच है, तो उसकी जगह आप क्या लोगे अल्टरनेट, अगर राजमा नहीं अवेलेबल है तो ग्रीन ग्राम मिल्क भी ले सकते हो क्योंकि प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो रेगुलेटरी फूड्स में क्या है, अगर अनियन, बीन्स या टोमेटो नहीं ले पाते हो तो अगर आपको सपोज, देखो हर चीज हर जगह नहीं है, तो दीज आर द ऑल्टरनेशन। तो कैरेट, अनियन एंड टोमेटो, कैरेट के साथ भी ले सकते हो। अगर आपने बीन्स की सब्जी बनाई थी अनियन और टोमेटो के साथ, तो सेम चीजें आपको कैरेट के साथ भी अनियन टोमेटो ऐड करके सेम थिंग्स यू कैन गेट इट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स की ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट वन है, अगर आप देख रहे हो कि राइस खाओगे, राजमा करी खानी है, बीन वेजिटेबल्स खानी है, अगर उसकी ड्राई प्रिपरेशन है, अगर ये चीज इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से जो आपको मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि अगर आप कोई और खाते हो तो उसमें क्या होगा, राइस, राजमा, अनियन, टोमेटो फैट्स हैं, बीन, अनियन, फैट, ये ऐसे, मतलब मेकिंग कुड बी अ डिफरेंट वन। फिर इसके साथ अगर आप चपाती, दाल, कैरेट, पोटैटो, वेजिटेबल्स लेते हो, उसके बाद आप व्हीट फ्लोर, ग्रीन ग्राम, अनियन, टोमेटो फैट्स एंड ये सारी चीजें, मतलब ऑल्टरनेट भी चल जाता है, सिमिलर काइंड ऑफ मेकिंग कुड बी डिफरेंट। एंड नाउ अगेन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी गिविंग फूड में अगर राइस, फैट, पोटैटो है, तो अगर आप साउथ इंडियंस हैं तो आप उसकी जगह इडली, जो राइस और उड़द दाल की बनी होती है, दैट यू कैन हैव इट। एंड बॉडी बिल्डिंग में अगर उड़द दाल, अरहर और तूर दाल खा रहे हो तो आप मेन्यू में क्या, सांबर, अरहर दाल, लेडी फिंगर, पोटैटो, ड्रम स्टिक्स जो भी आप डाल के, ब्रिंजल्स एंड फैट डाल के बनाते हो। प्रोटेक्टिव फूड में आप लेडीज फिंगर एंड ड्रम स्टिक्स एंड ब्रिंजल ले सकते हो। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर आपको एनर्जी गिविंग चाहिए, आपको क्या दिया गया, राइस एंड फैट, आप उसकी खिचड़ी बना सकते हो। बॉडी बिल्डिंग में अगर ग्रीन ग्राम दाल भी दी गई है तो आप उसमें राइस ऐड करके देन अगेन ऑल्सो यू कैन मेक खिचड़ी। प्रोटेक्टिव फूड में क्या है, फूड आइटम अगर आपने सिलेक्ट किए हैं, स्पिनच, अनियन एंड टोमेटो, तो देन ऑल्सो यू कैन मेक फ्रॉम दैट। ओके, सो इस तरह के फूड। सो आपके पास रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक का आपको हमेशा ख्याल रखना है, उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है। रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक किसके बेसिस पे होती है, एक तो पर्टिकुलर पर्सन है जो पर्सनलाइज, जो मैं आपको बात बोलती हूँ उसमें 3-4 क्राइटेरिया है, उसके फिजिकल एक्टिविटी, एज, बॉडी वेट, ये सारी चीजों का, और दूसरा वो नॉर्मल है और या क्लिनिकल है। तो उसके अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक के अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायरमेंट पहले देखनी है उस पर्सन की, एंड देन सेफ्टी मार्जिन भी। आप पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा दोगे, आज के लिए 20 कैलोरीज चाहिए तो 20 ही प्रोवाइड करोगे, 25 नहीं हो सकती है। नो, यू हैव टू गिव देम लिटिल बिट मोर फॉर, तो सो दैट फॉर द स्टोरेज ऑल्सो, ठीक है। सो बॉडी में स्टोर्ड रहे, ये थोड़ा है कि कैलोरीज खत्म है, ऐसा नहीं होता ही नहीं है वैसे तो ऐसा, ठीक है, बिकॉज आपके पास आप हमेशा ज्यादा लेते ही और स्टोर्ड होती ही है, ठीक है। सो मैम सॉरी फिर से पूछना चाहता हूँ, सी व्हेन वी आर प्लानिंग अ डाइट, बराबर, अगर किसी का डाइट प्लान कर रहे हैं तो आपने बताया था कि नॉर्मल आदमी का 1800 किलो कैलोरी इनटेक होना चाहिए, एक मार्जिन बताया था मैंने, एक मार्जिन आपने बताया था। तो अभी सुबह से शाम तक जो पोर्शन हम लोग प्लान करते हैं डाइट के अंदर, राइट, सो व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन, सुबह कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, दोपहर को कितनी होनी चाहिए, शाम को कितनी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा, ये तो बड़ा ही कॉमन सा आपने बताया, यस आई नो कि सुबह सबसे ज्यादा होनी चाहिए और रात को लीस्ट होनी चाहिए। ओके, सो मतलब उसका फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिजिकल एक्टिविटी हमने मैटर करनी है, तो पर्सनलाइज्ड पर्सन
एज, बॉडी वेट, बॉडी ओके वेट के हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। अगर बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, अब देखो दो चीजें हैं, एज छोटी होगी तो बॉडी वेट कम होगा ना। बच्चा 5 साल का है, उसको आप 20 साल का जो ऊंचा लंबा इंसान या यंग पर्सन होगा उसकी जितनी चीजें नहीं दे सकते। तो एज, बॉडी वेट दोनों चीजें, और दूसरा ग्रोइंग एज, डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी, चौथा वो नॉर्मल है या क्लिनिकल केस है। ये 4 चीजें तो आपको बेसिकली देखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आते हैं हम किस फूड से एलर्जी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, आप समझ रहे हो इन चीजों को। तो क्लिनिकल कंडीशन में गया। हाँ, सो ये चीजें हमें देखनी ही पड़ती हैं। 4 चीजें तो आपको देखनी है। छोटा बच्चा है, उसको किस तरह की फीड और किस तरह की, अब मैंने आपको वैसे एग्जांपल लेके बताया था कि पर पर्सन, एक यंग पर्सन, एडोलेसेंस 20-22 साल का बंदा है, उसके लिए अगर वो नॉर्मल है, इफ ही इज नॉट गोइंग टू जिम एंड ऑल, तो 1800 से 2000 कैलोरी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ही को डिवाइड करनी है, ओके ठीक है। और डिपेंड इसी पे करता है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आप लो करते जाएंगे, और डिपेंड करता है कि आप रात को, जैसे मैंने कहा था, फ्रूट्स नहीं देने हैं, जूसेस नहीं देने हैं, मॉर्निंग में आप दोगे, दिन में दोगे, उन चीजों का भी ख्याल रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का किसके साथ क्या ख्याल रखना है, ठीक है। और मॉर्निंग में आप क्या दोगे कि अगर वो फिजिकल, अब संडे है तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, सारा दिन बेड पे ही लोग, तो यू कैन रिड्यूस दोस कैलोरीज ऑन दैट डे, वर्किंग डेज एंड एक्सक्यूज मी ऑल्सो। मैम, हाँ जी, मैम बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज चने की दाल बनाई है तो चने की दाल भी सूट्स मी वेरी वेल, बट वही चने की दाल जो है मेरे किसी फैमिली मेंबर को सूट नहीं करेगी और वो पूरा दिन बेचारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान रहेगा। मे बी तो यूरिक ऐसा एसिड तो का। होगा नहीं ना कि मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दाल बनाऊंगी, राइट? तो इसमें क्या हम फूड में ऐसा कुछ छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं? जैसे सपोज मैंने अपने आप एक्सपीरियंस किया था कि अगर मैं वही अदरक का टुकड़ा अगर खाने से पहले उस बंदे को खिला देती हूँ ना तो उसको चने की दाल फिर हैवी नहीं लगती है। तो ऐसे जो छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो हम कर सकते हैं, और ये कर देखो सकते अगर हैं तो किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल होती है ना, ये थोड़ा बहुत क्लिनिकल हो गया ना, तो आप उसको हम्म, तो आप जिंजर की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। जिंजर इज हैविंग अ लिटिल बिट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इतना ज्यादा नहीं है ड्रास्टिक, नहीं तो आपको पेंटोसिड एंड ऑल मेडिसिन पे जाना पड़ता है, ठीक है। सो हम घरों में भी बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स, इंडिया में तो खासकर ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी देके भी अपनी चेंजेस ऑफ फूड को, आप अगर आपको भी देखो, आप अलग क्यों बनाएंगी, उसी को जिंजर क्यों देंगी, आप दाल में ही जिंजर डाल के बनाइए, उसमें हम्म। उसका इंग्रेडिएंट आ जाएगा। सो अगर आपको जिंजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाई यू आर मेकिंग योर दाल विदाउट जिंजर, ठीक है। So ma'am, आपको are we going to study all these in our यस यू हैव टू, ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिस इज अ वाइड फील्ड। आप कितने केसेस, एवरी केस इज इंडिविजुअल, एवरी केस इज इंडिविजुअल। मैं कह तो रही हूँ आपको, पर्सनलाइज्ड वर्ड का मतलब ही इंडिविजुअलिटी है, हर किसी के लिए अलग। आपका काम तो ही मैम ये हमारा कोर्स ये सब कवर कर लेगा? नहीं, आपके कोर्स में ये ज्यादा नहीं है, आपके कोर्स में ये कम बातें हैं, बिकॉज मैं एमएससी को पढ़ाती हूँ, डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ाती हूँ, बट आई रियली वांटेड टू गिव यू दिस थिंग। डीएनएचई में बहुत ज्यादा नहीं है, मैं मील प्लानिंग और डाइट चार्ट्स तो है ही नहीं है, बट मैं आपको सेंसिटाइज करती हूँ टुवर्ड्स दिस, बिकॉज जब चैप्टर आता है तो मैं पता नहीं, मैं एक्चुअली न्यूट्रिशन में मुझसे बोला जाता है, मुझसे कम होता ही नहीं है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, बिकॉज मेरे को है कि जितना भी आप लर्न कर पाओ, जितनी मैं क्लासेस लूँ, जितने ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ। डॉक्टर की तरह एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो, आपको मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रीड करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर्स दे आर डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशंस, मैं एमएससी एमएसडीएफएसएम भी लेती हूँ, सो जितने डॉक्टर्स आपको पता है, अगेन दे आर डूइंग द मैम पोस्ट अच्छा हुआ ग्रेजुएशन। आपने बोला ये टर्म। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनएचई एंड एमएस वो आपने जो बताया? DNHE is a diploma, 1 year diploma after +2. So ओके MSDFSM is an MSc, ठीक है, इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। वो ओके। उसकी ग्रेजुएशन है, साइंस ग्रेजुएट। सो इफ एनीवन हैज डन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, अगर उसने उससे किया है बीएससी या डिप्लोमा, तो शी कैन टेक द एडमिशन इन, वो अच्छा रहता है, मतलब आप जो बता रहे हो। आप इग्नो की साइट पे जाके उसकी देख सकते हैं Yes, I have seen। qualifications। मतलब मुझे ये पूछना है कि डिग्री डीएनएचई का बड़ा है कि जो आप बता रहे हैं? एमएससी सर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, ये डिप्लोमा है 1 साल का, ओके ओके वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद आप सीधा सीधा डीटी लगाते हैं आपके नाम के आगे, एंड यू कैन ओपन योर क्लिनिक, सीधा सीधा। ओके ओके। वो तो बहुत टफ है, उसकी किताबें अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो वो तो बहुत वास्ट है,
बट एज आई एम अ काउंसलर फॉर एमएससी एंड आई एम काउंसलर फॉर डीएनएचई को तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ. सो मुझे ये होता है कि जब भी कुछ आया है, सो इफ आई कैन गिव यू द एक्स्ट्रा नॉलेज उसके साथ लगते, सो आपको सेंसिटाइज करती हूँ. आपके स्लाइड्स में उतना ज्यादा नहीं है, बट वेन एवर आई वॉज डिस्कसिंग द फूड ग्रुप्स, आप में सिर्फ फूड ग्रुप्स हैं, उसमें थोड़े थोड़े उनके फंक्शन है, उनके सोर्सेज के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है. बट आप में मील प्लानिंग एंड ऑल ये सब नहीं है, डाइट चार्ट्स नहीं मैम, है. तो हाउ इज दिस कोर्स गोइंग टू बेनिफिट अस? नहीं, काफी बेनिफिट है, आप कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मील प्लानिंग करके सीख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, बट उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है. बट बहुत लोग हैं जो डीएनएचई करके भी बहुत अच्छी मील प्लानिंग है, बट दे लर्न एक्स्ट्रा, दे रीड एक्स्ट्रा. आपको पढ़ना पड़ेगा. डीएनएचई मैम के काइंडली सजेस्ट, कुछ है, बहुत मैम कुछ इट है. इज अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप ना हमें ये बुक सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये इस कोर्स का जो मटेरियल है आई डोंट थिंक वो इतना इनफ होगा कि हम मील प्लानिंग कर पाएंगे किसी के भी लिए. लेकिन आप अगर इस चीज को समझ आएंगे ना, तो और एक्स्ट्रा जब पढ़ते रहेंगे तो आप मील प्लान कर पाएंगे, हाँ, ऐसी तो वो बात नहीं. एक्स्ट्रा जो रीडिंग की बुक्स है ना वो आप हमें सजेस्ट करते रहिएगा, है ठीक ना? है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जी कोई मैम, बात नहीं. थैंक यू मैम. वेलकम जी. सो आई जस्ट गिव यू द नॉलेज बिकॉज आप लोग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं बताऊं, सबके फेसेस दिख रहे होते हैं मुझे. सो आप इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो सिर्फ डीएनएचई करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है. आई एम देयर इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, सो ओके. सो अब हमें ये रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक आई टोल्ड यू, इसकी भी बड़े बड़े टेबल्स होते हैं कि किसका कितना होगा, कितना नहीं होगा, और कितने बड़े पर्सन को कितना रिक्वायर्ड है. अब अगर मतलब ये सब कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, हमारी आपकी बुक में इतनी कैलकुलेशंस नहीं है. अब हम आते हैं, ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, सो मैं थोड़ा सा सिलेबस भी कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमेशा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है. सो गाइडलाइंस प्लानिंग फॉर द बैलेंस डाइट, सबसे पहले क्या है, वही मैंने बताया, इंडिविजुअल स्पेसिफिक मीन्स पर्सनलाइज, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड देन द रीजन स्पेसिफिक ऑल्सो एंड इनकम स्पेसिफिक ऑल्सो. अब ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है, जो मैंने तीन ही पहले मैंने पर्सनलाइज वर्ड कहा था, तो रीजन स्पेसिफिक क्या होगी, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी. पंजाब के बंदों को आप साउथ इंडियन नहीं खिला सकते, साउथ इंडियन को आप पंजाब की डिशेस नहीं खिला पाएंगे, या रीजन है, पहाड़ी लोग हैं, वट एवर. द रीजन स्पेसिफिक आप समझ गए हैं, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कुकिंग मेथड्स हैं, अलग तरह के कॉन्डिमेंट्स दे यूज, अलग तरह के चीजें, है ना. एंड देन और जो है रिलीजन स्पेसिफिक भी होती हैं, और इनकम स्पेसिफिक. इनकम स्पेसिफिक मतलब देखो, हर कोई बंदा, एवरी पर्सन इज नॉट सोशली और इकोनॉमिकली सेम पर्सन. कुछ लोग बादाम खाते हैं, कुछ मूंगफली ही खाएंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली, तो फाइनेंशियल स्टेटस है. सो इन चीजों को मैं आपको एमएससी के बेसिस पे बताती हूँ. एडवांस न्यूट्रिशन कई लोग कर सकते हैं, बट कई लोगों को हम पब्लिक न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है ऐसा. सो न्यूट्रिशन इज अ वेरियस काइंड ऑफ. पब्लिक न्यूट्रिशन में हम लोग ना ज्यादा थोड़ी एवरेज, या जो बिलो एवरेज से नीचे, या पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों को, देखो उन्होंने भी खाना, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारा फर्ज है. सो हम किस तरह की चीजों से उनको देंगे, हम उनको महंगे फ्रूट्स नहीं सजेस्ट कर सकते, आप हमको बादाम ड्राई फ्रूट्स पे नहीं डाल सकते, आपको वो देसी घी, मतलब ऐसी सी चीजें, या प्रोटीन्स के लिए. बट आपको उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे चलाई का साग है, इफ दे कैन नॉट हैव द स्पिनच, चलाई का साग है, तो इक्वली उसमें से कौन से आयरन मिलता है. गोभी का फूल नहीं खरीद के खा सकते, तो गोभी के साइड के पत्ते जो होते हैं, दे आर आयरन रिच, ठीक है. तो आपको वो सजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है. ये आपको देखना है कि उसकी मील प्लानिंग. अच्छा, उसके कुकिंग मेथड्स का भी खर्चा नहीं होता है, वो कैसे कुक करेगा, उसके कुकिंग मेथड्स को भी डिफाइन करना पड़ता है. सो दीज आर द सम थिंग्स which आपको which you really need to provide the nutrition to the even to the below poverty line, जो socially कैपेबल नहीं है, ठीक है. हर कोई बंदा पनीर खरीद के नहीं खा पाता. आप देखिए कितने गरीब लोग, मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड बिकॉज दिस हैज दिस ओन I mean different expressions. Okay, so I just let you know that if they are not very economically privileged लोग, या फाइनेंशियली प्रिविलेज नहीं है, थोड़ा डाउन द लाइन है, so it becomes our duty because we belong to this field, so we have to provide. This is a noble cause कि आप उनको भी न्यूट्रिशन पूरा, उनको बीमार नहीं करना, हमें उनको भी न्यूट्रिशन, उनको भी इक्वली प्रोटीन प्रोवाइड करना है. इफ दे आर, वहां पे क्राइटेरिया सेम है, दैट उनको भी इक्वली उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, पर्सनलाइज चॉइसेस के बेसिस पे आपको उनके कुकिंग मेथड्स एंड द थिंग्स, उनके भी 3 टाइप्स के फूड्स, एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग एंड द रेगुलेटरी ऑल्सो.
यू हैव टू प्रोवाइड। आपको देखना है कोई कितना ले पाता है, तो आप उसको उस हिसाब से सजेस्ट करोगे, आप ये खाइए, आप ये खाइए, आप ये खाइए, ठीक है। एंड हमें किसी को फील नहीं कराना होता कि आप सोशली नहीं है। हाँ, जो वेल ऑफ है आप उनको कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ जो थोड़े हैं, थोड़े सोशली या फाइनेंशियली अनप्रिविलेज्ड हैं, सो आपको उनको भी फूड आइटम्स और फूड प्रोवाइड करना ही है। न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन, नॉट फूड, न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो इनकम से पैसे, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको करना। अच्छा, आप सबसे पहले स्टेप्स है ना जो आपको बैलेंस्ड फूड। आप सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्संस। एंड एक नॉर्मल पर्सन के लिए जब आप प्लान करोगे बैलेंस डाइट्स, तो उसमें वही चीजें देखो, सबसे पहले एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल, इनकम, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन एंड वेयर इट इज रिजाइडिंग। सो ऑल थिंग्स वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे आपको मील प्लान करना है। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स आपको करना है। एंड फिर आपको क्या करना होगा, आरडीआई की वैल्यूज भी देखनी है जो एनर्जी गिविंग और प्रोटीन गिविंग है, तो उसके हिसाब से दोगे। अब आपको फिर डिसाइड भी करना है कि आपको कौन से फूड एनर्जी गिविंग है, तो कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ फूड से लेना है। बॉडी बिल्डिंग है तो किस तरह के फूड से, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंगली। एंड प्रोटेक्टिव फूड्स भी देने हैं, कितने वेजिटेबल फूड्स देने हैं। तो तीनों तरह की कैटेगरीज में से आपको फूड डालने होते हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी है, एनर्जी गिविंग भी है एंड प्रोटेक्टिव। आप किसी को ये थोड़ो कि एनर्जी गिविंग नहीं दोगे या बॉडी बिल्डिंग नहीं दोगे, ठीक है, या फिर आप उसको प्रोटेक्टिव फूड्स नहीं दोगे। सो यू हैव टू चूज फ्रॉम ईच एंड एवरी कैटेगरी और बैलेंस फूड बनाना है। ब्रेकफास्ट अलग तैयार करना है, लंच अलग से करना है, इन बिटवीन फूड्स अलग से देने हैं, इवनिंग स्नैक्स अलग से बनाने हैं, एंड देन डिनर्स आपको अलग से प्लान करने होते हैं, ठीक है। सो फिर अब दूसरी बात, एक ये पर्सनली चॉइस के ऊपर नंबर ऑफ मील्स भी देखनी होती हैं, ठीक है, उसके एक्टिविटी लेवल पे। कई लोग बहुत ज्यादा फूड खाते हैं तो इन बिटवीन मील्स मत दो, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खिलाना है तो इन बिटवीन मील्स देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कैलोरीज पूरी करनी है उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो उसके बाद है डिसाइड कि आइटम्स कौन सी किस अमाउंट में देनी है, कौन सा मील है, आपने मेनू में क्या रखा है, ठीक है। तो दाल के साथ आज चावल देने हैं तो दाल कितनी देनी है, फुल्के दिए तो कितने देने हैं, उसके सैलेड कितना देना है, कर्ड देना है नहीं देना है, इस तरह से। सो छोटी चीजें नहीं होती हैं। व्हेनेवर यू स्टार्ट प्लानिंग ना, स्टार्ट करो प्लानिंग। मील प्लानिंग एंड डाइट चार्ट्स ये बहुत बड़ी चीज है। डीएनएचई वाले बहुत अच्छे से जो पढ़ के बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। they are doing practicing, actually they are practicing, okay। So all this thing which we have actually I have discussed. So now we are going to the next chapter, ठीक है। So उसमें देखते हैं क्या है। So this was the meal planning, okay। तो principal meal planning जो आपकी है, इसमें planning a meal for adult। अब आ रहे हैं हम, ठीक है। So now we are discussing this one। इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी हम बैलेंस डाइट फॉर कॉमन पर्संस। नाउ अब हम देख रहे हैं कि हमने मील प्लान किसके लिए करना है, एक अडल्ट के लिए। अडल्ट के लिए क्या करना है मील प्लानिंग में, सबसे पहले क्या करना है कि अब हम एक केस ले लेते हैं, चलो, कि एक केस है, मीना एंड राजू आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे लव ईटिंग दी बर्गर्स एंड द चॉकलेट्स, टॉफीज एंड ऑल, ये सारे केसेस हैं, ठीक है। So their eating habits are influenced by their friends and the food advertisement, जैसे देखता है बच्चा तो उस तरह की चीजें खाता है टीवी में देख के, ठीक है। तो मदर जो सीता देवी है ना, उनकी वो डिसअप्रूव करती है इनकी ईटिंग हैबिट्स को, ठीक है। वो उनको कहती है कि दूध पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, राइस खाओ, क्योंकि वो चॉकलेट टॉफीज एंड ऑल। सो दिस इज अ कॉमन हैबिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब एक और केस है, जो मोहन एंड आभा अपने फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया। तो आभा थी कि उसने प्रिपेयर करना था कि बहुत ही डिलिशियस एंड अट्रैक्टिव डिशेस बनाए अपने गेस्ट के लिए, और उसने फिर ट्राई किया कि फूड कॉम्बिनेशंस को इस तरह से कि मेथड जो था वैरायटी एंड मील इस तरह से बने कि बहुत अपीलिंग हो, ठीक है। अब एक और तीसरा केस है कि रत्ती है एक केस, ठीक है, जो एक वर्किंग वुमेन है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ज्यादा फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड नहीं है, चलो कह लो, ठीक है, और टाइम एनर्जी भी नहीं है। एंड देन उसको अब अपने लिए न्यूट्रिशियस फूड तो बनाना ही है, लेकिन कॉस्ट रीजनेबल रखनी है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे केसेस को अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अब सीता देवी वाला देख लेते हैं केस, ठीक है, और आभा और रत्ती, इन तीनों के केसेस देखो डिफरेंट हैं। एक ने अपने बच्चे के लिए बनाना है, एक ने घर में कोई आ रहा है तो उसने बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट करनी है फूड की, तीसरा है कि वो थोड़ी सी अनप्रिविलेज्ड है तो न्यूट्रिशन तो उसको भी चाहिए, ठीक है।
तो वो भी खाना बनाना। तो अब हमने मील प्लानिंग में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, कोई भी किसी भी तरह का मील प्लान करें, चाहे बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे बड़ों के लिए, चाहे अनप्रिविलेज्ड के लिए, चाहे फाइनेंशियल, जो भी किसी भी तरह का, जिससे 3 केसेस डिस्कस किए हैं। तो हमने देखना है कि फुलफिल होनी चाहिए हम अपनी नीड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कि साइज एंड कॉम्पोजिशन भी पूरी होनी चाहिए, और प्लान करना है मील प्लान अकॉर्डिंग टू फैमिली इनकम, ठीक है, ताकि मैक्सिमम यूज हो सके मनी का, अवेलेबल मनी है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। और तीसरा है हमें एड करना है प्रॉपरली एंड प्रेपरेशन ऑफ द फूड सर्विसेज, ताकि जितना भी हम खाने के लिए चीजें लाएं उनको प्रॉपरली हम यूज कर सकें ताकि वेस्टेज ना हो। सो इकोनॉमिकली लेबर एंड फ्यूल तीनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ द डाइट बाय मेकिंग द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फूड आइटम्स विद इन एंड द 3 फूड ग्रुप्स आल्सो, ये भी हमें ख्याल रखना है। और हमें देन वी हैव टू मेक द फूड मोर अपीलिंग टू, और पैलेटेबल भी हो वो खाने के लिए, गले में ना फंस जाए कि सूखा, ठीक है। एंड देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फूड आइटम्स, कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर के अकॉर्डिंगली, एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशियस मील टेकिंग इनटू द अकाउंट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। अब घर में इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, जैसे बच्चे नहीं खा रहे हैं उनको कैसे खिलाना है, माँ क्या करती है कि एक तरह से बनाएगी, एक तरह से नहीं करता, तो उसकी फॉर्म डिफरेंट से बनाती है, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड द मील्स टू देयर किड्स, खाएं भी वो। तो प्लान मील्स, और सबसे बड़ी बात है कि मील हमेशा एक एडवांस में बनेगा, प्री प्रेपरेशन भी रिक्वायर्ड होती है एवरी काइंड ऑफ अ मील, एंड द लेफ्ट ओवर्स भी जो होते हैं ना उसको भी हमें इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना होता है। हियर वी नॉट एक्चुअली एंडोर्स ऑफ वेस्टेज ऑफ द मील्स कि थ्रो कर दो मील को, फूड आइटम्स को, नो, वी कैन नॉट जस्ट एंडोर्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। सो ये सारी चीजें हैं। अब एक तरह के मील में क्या है, हमें जो वर्ड्स हम यूज करते हैं न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होने चाहिए, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए एवरी काइंड ऑफ अ मील व्हाट एवर वी आर ईटिंग, सो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें। दूसरा अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, तीसरा इनकम के अकॉर्डिंगली भी होना चाहिए, चौथा कि जो खा रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी, दे लाइक इट टू ईट, एंड देन मील प्लानिंग के अकॉर्डिंगली दूसरा सेटाइटी वैल्यू भी फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने इतनी सी चीज दे दी उसी में सब कुछ दे दिया, कार्ब्स, लिपिड्स, उसकी सेटाइटी फीलिंग, पेट तो भरा ही नहीं, ठीक है। तीसरा वैरायटी ऑफ मील्स भी हमें प्लान करने पड़ते हैं विद द कॉम्बिनेशन, एंड देन मील पैटर्न भी देखना पड़ता है कि किस किस तरह के मील के साथ क्या क्या है। इकोनॉमिकाइज भी करना है हमें, अपनी लेबर भी कम करनी है, और फ्यूल, ये नहीं है कि सुबह से शाम तक एक बंदा खाना ही बना रहा है, नो, द खाना द लेस टाइम टेकिंग भी होना चाहिए, एंड फ्यूल भी कम लगना चाहिए। ये नहीं है कि कुकिंग मेथड में टाइम एंड लेबर सारी कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच वी रियली नीड टू टॉक अबाउट, एंड देन वी हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे एक मील प्लान यहाँ डिस्कस किया हुआ है, आपकी बुक में ही है। ब्रेकफास्ट में आप दीजिए सैटरडे को अगर आप प्लान कर रही हैं, ठीक है, प्लेन पराठा हो गया ब्रेकफास्ट में विद बटर, पिकल एंड टी हो गया। लंच में राइस, चपाती, मूंग दाल, आलू बैंगन की सब्जी है, ठीक है। तो एंड डिनर में चपाती, पालक पनीर है, ये दे दिया आपने, ये दिस आर फॉर सम एडल्ट फूड्स। एंड देन फ्राइडे को क्या किया आपने, ब्रेकफास्ट में कॉलीफ्लावर स्टफ्ड पराठा बना दिया पिकल मिल्क के साथ। फिर लंच में है, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ, ये ऑल 6 डेज का मील प्लान है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे का, ठीक है। संडे का नहीं दिया है, संडे कुड बी अ चीट डे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें क्या क्या करना होता है कि एक तो मील प्लानिंग में हमें ना बहुत ज्यादा रेपिटेटिव फूड्स नहीं देने होते हैं, ठीक है, फूड कॉम्बिनेशन, ताकि बंदा बोर ही हो जाए, क्योंकि रोज रोज कोई एक चीज नहीं खाएगा, रेपिटेटिव फूड नहीं, सब कुछ अलग से प्लान करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि परचेज फूड आइटम्स इन एडवांस, प्री प्रेपरेशंस भी हैं, तो रिमेंबर बाइंग दी बल्क सेव्स ऑन टाइम, मनी एंड एनर्जी। ऑब्वियसली आप ग्रोसरी जब खरीदने जाती हैं तो आपको बहुत ही प्लानिंग से फूड आइटम्स खरीदनी पड़ेंगी कि रोज की डिफरेंट काइंड ऑफ अ मील प्लानिंग है, तो कौन कौन सी चीजें घर में होनी चाहिए। सो ये भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि जो लेफ्ट ओवर फूड्स होते हैं ना, उनको कैसे और उनके न्यूट्रिशन को हम कैसे यूज कर पाए। तो अंडरटेक प्री प्रेपरेशन इन एडवांस, और काफी सारे फूड्स होते हैं ना उसकी प्री प्रेपरेशन है, जैसे डोसा बनाना है तो प्री प्रेपरेशन आर रिक्वायर्ड, भिगोना है, चने की दाल बनानी है, या चिकपीस बनाने हैं, राइस, मतलब वट एवर, फीमेल्स दे नो ऑल द थिंग्स। एंड एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ द टाइम एंड द लेबर, आप पहले से भिगो के रखेंगे चीजें जल्दी बनेंगी,
ठीक है। उसे आपको एक और ख्याल रखना है, वैरायटी ऑफ मील्स यू शुड आल्सो टेक इनटू द अकाउंट कि आपको क्या रखना है। उसमें भी वैरायटी ऑफ मील्स में क्या है कि आपको क्या ख्याल रखना है कि कलर ऑफ द फूड वेरीड हो, वेरी द टाइप ऑफ द फूड इन सिलेक्टेड मील्स में, यूज ऑफ अ डिफरेंट कुकिंग मेथड्स आल्सो। एक बार एक सब्जी किसी तरीके से बनाई, दूसरी बार दूसरी तरीके से बनाइए, तो उससे भी वैरायटी आ जाती है। ठीक है। फ्लेवर भी फर्क करना है, थोड़ी पहले खट्टी मीठी बना ली, आज नमकीन बना ली है, इस तरह की चीजें हैं। टेक्सचर्स का ख्याल रखना है आपको। ठीक है। अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स इन मील्स। ठीक है। टेक्सचर इन मील्स, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू का ख्याल रखना है कि पेट भर जाए, खाली पेट ना हो, तो हमने सब कुछ दे दिया तो सब कुछ आ गया। ठीक है। सो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको इन चीजों का ख्याल रखना ही रखना है वेदर व्हेनेवर यू आर प्लानिंग द मील। ठीक है। सो अब आपको एक और केसेस हैं जिसमें आपको प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, तो सीधी सीधी बात है, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपको प्रोटीन रिच फूड देना है। ठीक है। बिकॉज आपको प्रेगनेंसी को समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में बॉडी ऑर्गन्स में, फीमेल की बॉडी में चेंजेस आती हैं, प्लेसेंटा में चेंजेस आती हैं। तो अंदर अगर इन्फेंट पल रहा है वॉर्म में, तो दैट रिक्वायर्स अ मोर प्रोटीन्स, उसके चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म में आ जाता है, बीएमआर रेट बढ़ जाता है, बॉडी फ्लूइड में भी चेंजेस आती हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन भी उसका ज्यादा होना चाहिए, कैल्शियम के लेवल्स, आयरन के लेवल आपको इंक्रीज करने हैं, चेंजेस इन डाइजेस्टिव फंक्शन, ऑब्वियसली बीएमआर बढ़ जाता है। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है ना, इंक्रीज रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन का भी बढ़ जाता है। ठीक है। बिकॉज द किड इज रिक्वायर्ड मोर आयरन एंड द कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द किड ऑल्सो, बिकॉज द बोन्स आर इन मेकिंग, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड मोर। ठीक है। तो और पर हमें खाना ऐसा भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक ना बहुत ज्यादा फिलिंग आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी दिक्कत आ जाती है और फिलिंग आनी शुरू हो जाती है और फ्लैचुलेंस होनी शुरू हो जाती है। इतना भी ज्यादा नहीं देना, कई प्रेगनेंसी में इतना खाना शुरू कर देते हैं। नो, यू हैव टू थिंक एंड देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही खाना है, क्योंकि चेंजेस आती हैं बॉडी वेट में, क्योंकि ग्रो कर रहा है फिटस, इंक्रीज द साइट ऑफ द यूट्रस हो रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इंक्रीज इन द ब्लड एंड टोटल बॉडी फ्लूइड्स भी हो रहा है, डेपोजिशन ऑफ द फैट्स इन द बॉडी भी हो रहा है। सो ये सारी चीजें, और आपको हर बार ख्याल रखना है प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 months होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 months होता है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 6 to 9 months होता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी इतना ग्रोन नहीं होता है। ठीक है। तो तब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब 3 to 6 ट्राइमेस्टर में जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है 9th month तक पहुंचते पहुंचते तो बेबी बहुत ग्रो कर चुका होता है, गेन इन वेट होता है, कंसीडरेबल इंडिकेटर्स ऑफ द प्रेगनेंसी होते ही होते हैं, क्योंकि बेबी बहुत ग्रो कर चुका होता है, मदर का भी वेट बहुत बढ़ चुका होता है। तो आपको जो रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स है ना फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, तो वो किस लिए हैं, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक के हिसाब से जो ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है। सो न्यूट्रिएंट कौन से, कैलोरीज, किलो कैलोरीज में आपको प्लस 300 किलो कैलोरीज चाहिए, ये पर डे के हिसाब से चल रही हैं। प्रोटीन्स चाहिए आपको प्लस 15 ग्राम्स, एंड कैल्शियम, आयरन, रेटिनॉल एक्स्ट्रा, ये सारा इंक्रीज्ड अमाउंट में चाहिए। ठीक है। सो ये सारी चीजें जब आप लोगे, इस प्लीज इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना। This is all common words these are giving, which I'm going here, I'm making you understand. So minerals are of particular importance जो हैं उसमें एनर्जी गिविंग है, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कैल्शियम एंड आयरन पर्टिकुलरली चाहिए, जो मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। ठीक है। फीमेल्स के लिए। सो उसमें ठीक है। तो आपको फीमेल्स में चाहिए, और हाँ सॉरी ये बंद हो गया। ओके। सो इसमें हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल, दिस इज ऑलरेडी गिवन। सो इसमें सारा रेपिटेटिव है। ठीक है। आपको ज्यादा चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, वो उस हिसाब से आप पॉइंट्स टू रिमेंबर है प्रेगनेंसी में। ठीक है। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स विच इज गिवन। डूज में क्या है आपका कि इंश्योर कि प्रेग्नेंट वुमेन अटेन्स वेट 8 to 10 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए कि अब इतना खिला रहे हैं कि वेट बढ़ गया फीमेल का, फिटस को नहीं लग रहा है। ठीक है। और इसमें सीरियल, मिल्क प्रोडक्ट्स और नट्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें जरूर ऐड करें। आयरन, फोलिक एसिड टेबलेट जरूर देनी है। आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है कुकिंग में,
and small but frequent meals. ये नहीं है कि gap के बाद, no, that food should be given in small meals, but the frequent meals should be given. Okay, so the energy should not be low. न्यूट्रिशियस स्नैक्स बीच में भी दे सकते हो, बिस्किट, रस एंड कार्बोहाइड्रेटेड फूड भी दे सकते हो इन द मॉर्निंग ऑल्सो टू प्रिवेंट द मॉर्निंग सिकनेस. ओके, सो फाइबर रिच फूड दे सकते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर भी देना है, बिकॉज अगर वो आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड खा रही है, स्पेसिफिकली आयरन रिच, सो शी शुड नॉट बी हैविंग द कॉन्स्टिपेशन, यूजुअली होती है आयरन इनटेक से. ठीक है, so you should provide a good amount of the water too to avoid that constipation. Okay, so include the fiber rich food also and plenty of water in a diet to relieve the constipation. ठीक है, and women को drink juices and fluids बहुत ज़्यादा खाने पीने भी चाहिए. ठीक है, and other drinks also other than the water also. ठीक है, simple exercises, very small, not very exaggerated, very simple exercises she should actually pursue, obviously with the help of the gynecologist, which she can suggest how, which kind of the obviously exercises she has to do. Okay, से और ये बहुत इंश्योर करना चाहिए आपको कि प्रेग्नेंट वुमेन टेक्स द एडिक्वेट रेस्ट आफ्टर हैविंग ईच मील. अब डोंट्स में क्या आता है कि अवॉइड टू मच ऑफ द फूड. वन मील में इतना खाना शुरू कर दी, समटाइम्स क्रेविंग है, इतना ज्यादा खाती हैं तो ओवरवेट हो जाएंगी. ठीक है, कंजम्पशन ऑफ द फूड्स विद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं लेनी है, बहुत स्पाइसी या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स यू शुड अवॉइड. एंड स्पाइसी फ्राइड फैटी फूड्स भी, मतलब लिमिटेड हम कार्ब्स एंड सब कुछ प्लान करके दे रहे हैं, बट स्पाइसी फ्राइड में ओवर हो जाएगा सब फैटी फूड्स में. एंड प्रेग्नेंट वुमेन स्मोकिंग नहीं है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बिल्कुल नहीं लेने हैं. एंड ड्रग्स जो भी प्रेस्क्राइब होती हैं डॉक्टर से एंड जो अवॉइड होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. टू मच टी कॉफी नहीं लेनी है. एंड कोई बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, स्ट्रेनस वर्क भी नहीं करना है. mild exercises which should be actually guided by the gynecologist. And discourage the pregnant women for doing this strenuous hard work, and excessive weight bhi nahi uthana hai. And then curtail the diet of the pregnancy women in a short मतलब थोड़ी थोड़ी डाइट्स लेते रहना है. ठीक है, so this is the things. And then आपको मल्टीविटामिन्स का भी ख्याल रखना है, कितनी एनर्जी कैलोरीज जितनी जितनी लेनी है अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, सो ये सारी इंडिविजुअल डाइट्स थी, एक एडल्ट के लिए है एंड देन डिफरेंट पर्सन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के लिए है, एंड अ प्रेग्नेंट विमेन थी जिसमें जिन बातों की ख्याल रखनी है प्री स्कूलर्स एंड स्कूलर्स के लिए. अब आपको इन्फेंट को अगर देखना है ना, तो आपको उसको वेट गेन होते हुए देखना पड़ेगा. एक ना चार्ट्स होते हैं, आपको उसका वेट गेन के अकॉर्डिंगली, ऑब्वियसली अगर आप डाइट दे रहे हैं तो आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा. आप देखो बर्थ पे वेट नोट किया जाता है सब, क्या है ना, तो जब बर्थ वेट नोट किया जाता है एंड देन आफ्टर 2 months देन ऑल्सो इट शुड बी नोटेड डाउन 5 months पे, 8 months पे, 10 months पे, 12 months पे, फिर 1.5 साल पे, 6 महीने पे. ऑब्वियसली अगर ग्रोथ को मॉनिटर करना है ना, तो वेट शुड बी इंक्रीज्ड. और वो होगा किससे इंक्रीज? इफ यू वुड बी हैविंग गिविंग द किड ऑब्वियसली डाइट. ठीक है, गुड डाइट विच कुड बी एक्चुअली एनहांसिंग हिज ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑल्सो. आपको प्रोटीनेशियस डाइट, एनर्जी गिविंग डाइट्स एंड अलॉन्ग विद द बॉडी बिल्डिंग डाइट्स आपको ग्रुप सिलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, अब अगर डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स हैं अगर इन्फेंट्स की, तो आपको क्या है, एनर्जी किलो कैलोरीज कितनी देनी है. 6 months वाले को आपको डेली के बेसिस पे 108 कैलोरीज, अगर 6 to 12 months का हो गया तो 98. ओके, सो प्रोटीन्स 2.05 kg एंड 1.65 kg से 12 में. ये सारे टेबल आपके बने हुए हैं ग्रुप बुक में, सो यू कैन गो थ्रू रादर देन रीडिंग. ठीक है, तो आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा. मैं आपको कॉमनली समझा रही हूँ कि whenever the kid is growing, so you have to think specifically for the proteins, energy giving foods along with the regulatory also. आपको तीनों तरह के फूड्स में के ग्रुप्स में आपको ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब आरडीआई प्रोटीन्स एंड आरडीआई जो रिकमेंड करती है ना, प्रोटीन एंड सर्टेन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी एंड द विटामिन ए आपको हाईली देना पड़ेगा. ठीक है, because these are some kind of the minerals which has required the most in the body. Calcium, iron and vitamin C जो water soluble है, vitamin A which is required for the eyes for the persons, kids.
ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विच वी डिस्कस। एंड उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर है उसके लिए भी ऑलमोस्ट वही चीजें चाहिए होती हैं, ऐसा सा ही फूड आपको प्लान करना पड़ता है विच इज रिक्वायर्ड इन दी प्रेग्नेंट फीमेल्स। ओके, प्रेग्नेंट में जो होता है वो लेक्टेटिंग मदर्स को भी ऑलमोस्ट वैसा सा ही देना होता है, बिकॉज ये उस मदर के लिए भी जरूरी होता है और जो फीड में बच्चे को भी जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज दैट इंडिविजुअल केसेस। एंड इसी तरह के केसेस आपको एडोलेसेंस के लिए भी चाहिए होंगे, उसके लिए भी आपको यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स। ठीक है, तो एक बुक में अलग अलग तरह की मील प्लानिंग के पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपको किस तरह के देखने हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। आप ना 2-3 कैटेगरी में, एक तो ब्रेस्ट प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, एक हो गए कि बहुत जो फ्रॉम आफ्टर बर्थ जो बच्चा 3-4 महीने साल का होता है उसके लिए, और उसके बाद एक ऐसी मील प्लानिंग है जो एडोलेसेंस के लिए और एक एडल्ट्स के लिए। ये 3-4 तरह के केसेस आपकी बुक में हैं कि क्या क्या ख्याल रखना है। और अगर हम बजटिंग देखें, अब हमने ये देख लिया कि सबको क्या क्या देना है, लेकिन अब हर किसी के लिए करने के लिए आपको बजट का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, बजट क्या है कि एक रिटर्न डाउन मनी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, प्लान करोगे बजट आपका। ठीक है, जितनी भी मनी आप अफोर्ड कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, स्मेल सी आ रही है ना, ठीक है, मनी के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ठीक है, तो कितनी, ये बहुत जरूरी है। अब आपने फूड के लिए देखो बजट प्लान कर लिया, आपकी कितनी इनकम है, उसमें आपने बड़े सारे खर्चे हैं, उसमें से आप फूड के ऊपर कितना लगाएंगी, उसमें से आपके पास सपोज 1500 है, आपने उसमें ही फूड प्लान करना, तो उसी में आप डिफरेंट चीजें लाएंगे और आपको देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की चीज बाजार से खरीदनी है और इसमें डेली कुकिंग मेथड्स में कितनी ये चीज यूज होती है और उससे क्या मिलता है, और मेरे बच्चों को मैंने क्या देना, हस्बैंड को क्या देना, अगर घर में ओल्ड पर्सन है उसको क्या देना, खुद ने भी क्या खाना। सो आपको ये बजटिंग करने के लिए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। स्टेप्स क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच यू नीड इन योर होम एंड हाउ मच मनी यू रियली वांटेड टू स्पेंड, एंड अरेंज दीज आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की सबसे पहले कौन सी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको फूड होता है, फिर क्लोथिंग है, फिर शेल्टर है, फिर हेल्थ पे भी रखना पड़ता है, फिर एजुकेशन भी बच्चों की। ठीक है, तो प्रोबेबली जो आपका एक्सपेंडिचर है फूड का, उसको फिर जब जितना भी आपने प्लान कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रोसरी भी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि किस तरह का घर में लाइकिंग डिसलाइकिंग है और किस तरह का खाना पसंद किया जाता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर टोटल मनी आपको प्लान करके, अब जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बजटिंग पे, so एक तो यस, can I ask something? Yeah. Lactating women अगर है, right, after pregnancy if the woman is lactating, तो अगर उसका hair loss ज्यादा हो रहा है, so what are the essential vitamin minerals और क्या मतलब take care करना चाहिए? Biotin. Okay. And what about proteins? प्रोटीन्स तो लेने ही लेने हैं, प्रोटीन, एनर्जी लेवल, मैंने हर कैटेगरी का बताया। द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर कैन नॉट हैव एनी चॉइस, शी हैज टू, बिकॉज वो लैक्टेटिंग है, देन ऑल्सो बिकॉज अभी डिलीवर किया, उसकी अपनी भी कमी पूरी होनी चाहिए और बच्चे की भी, क्योंकि ग्रोइंग है। तो उसमें क्या है कि उसकी हेयर लॉस होती है, ज्यादातर होती है। ठीक है, तो आपको उसको मल्टीविटामिन चाहिए, और बायोटिन इज स्पेसिफिकली फॉर नेल एंड हेयर। What is the RDA limit, मतलब क्या है बायोटिन लेने? वो अब एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, ये मुझे वैल्यूज हमेशा भूल जाती हैं, इतने से इतने लेना है बायोटिन की खासकर। ठीक है, रफली आई डोंट रिमेम्बर। मार्केट में एक टैबलेट मिलती है, मे बी, जैसे आई डोंट थिंक सो, एक टैबलेट वुड बी इनफ इन अ डे, 1 टैबलेट, उसी हिसाब से बनी हुई है। आई डोंट रिमेम्बर इन मिलीग्राम्स एंड ऑल, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि माइक्रोग्राम्स में बायोटिन के नाम से ही आता है। बायोटिन, हाँ, बायोटिन के नाम से आता है, कंपनीज के नेम्स तो नहीं पता, और हो सकता है कि हमारे यहाँ पे क्या नाम है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की हैं, आपके एरिया में कुछ डिफरेंट हो, आई डोंट नो वेदर दैट वुड बी। बायोटिन भी आई थिंक सप्लीमेंटेशन फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है, और बायोटिन है ही सप्लीमेंट। ओके, सप्लीमेंट ही है, मल्टीविटामिन सब सप्लीमेंट कैटेगरी में ही आते हैं। जब हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो सप्लीमेंट्स ही होते हैं। सप्लीमेंट्स पता किसको कहते हैं?
So why supplement word is used? Because ये सब चीजें जो बायोटिन है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, ई है, ए है, रेटिनॉल है, कैरोटीनॉल, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, so we don't actually as a nutritionist we don't recommend to have these supplements from the market. कैप्सूल की फॉर्म में आयरन लो या कैप्सूल की फॉर्म में कैल्शियम लो या बायोटिन लो, हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज एज अ डाइटिशियन और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वी हैव टू प्रोवाइड इन अ फूड. हमें उस तरह के फूड देखने हैं, फूड आइटम्स देखनी है, फूड में इंक्लूड करना है और फूड में बताना है कि कितना खाना है और उसमें कितना है. नहीं पर मैडम आजकल तो मेडिसिनल फॉर्म में भी मिलता है ना टैबलेट्स, उसके फॉर्म मेडिसिनल में. नहीं, वो सप्लीमेंट्स कहते हैं ना, उसी को मैं कहती हूँ, वो कैप्सूल की फॉर्म में है. तो हमने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट फूड में देना है, पर फिर भी अगर पूरा नहीं होता तो सप्लीमेंट्स ही बचते हैं, क्योंकि वो उसमें उतना मिल जाता है. ओके फाइन बायोटिन ठीक का है ना, वैसे आरडी हमने नहीं फूड है, में देना बेसिकली. ठीक बायोटिन है का ना. आरडी सो नहीं है आपको वैसे. देखना पड़ता है कि कितने में है और कौन सी कंपनी का, बिकॉज मैं आई कैन नॉट, अब आपको मैं ये बता रही हूँ व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ दैट सप्लीमेंट की कितना लेना है, एंड व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट एंडोर्स एट दिस प्लेटफॉर्म. यस ऑफ कोर्स any एज एन any company वी कैन name. नॉट. I can just give the name of that multivitamin. Okay. ओके अगर मैं फाइन. आपको किसी का बात कह दूं विटामिन सी ये वाला, को आई कैन नॉट जस्ट endorse at this. Okay, so Yes, this yes. is, ठीक है. So Thank you. मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ और लेने को भी नहीं कह सकती हूँ, और ये भी नहीं कह उसका नहीं खाना है इसका खाना है. I cannot. यस. Okay. So okay, so this is the one कि आपको साइज ऑफ द फैमिली देखना है. ये आपको क्वेश्चन में बता दूं, ये फूड बजटिंग पेपर में आता ही आता है. इसके फैक्टर्स की कैसे करना है, this could be as a short answer type also, this could be as a long answer type question also. ये आएगा ही आएगा फूड बजटिंग. दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज फूड बजटिंग में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द सोशल सेक्टर्स डिस्कस करने पड़ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इसमें आपको इनकम ऑफ द फैमिली, साइज ऑफ द फैमिली, करंट फूड प्राइसेस. ऑब्वियसली आपको अगर फाइनेंशियली आजकल टमाटर इतने महंगे हुए हैं तो आप कम डालोगे. मतलब ये सब चीजें ख्याल रखना पड़ता है ना. सब्जी में मार्केट्स के आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है और आपका जो फूड बजटिंग है वो भी फिक्स्ड है, बट मार्केट में फूड के प्राइसेस अप्स डाउन जाते हैं, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. ठीक है. नियरनेस ऑफ द फैमिली टू द सोर्स एंड द फूड सप्लाई. और हो सकता है कुछ चीजें आप अपने घर में उगा रहे हैं, आपको मार्केट से नहीं लेनी पड़ती हैं, और समटाइम्स क्या है कि ये वाली चीज की होलसेल मार्केट आपके नजदीक है, वो आपको सस्ती मिलती है, पर कुछ चीज यहाँ कम सप्लाई होती है तो वो महंगी मिलेगी. सो इन चीजों पे भी आपको वर्क करना पड़ता है. तो अपॉर्चुनिटी फॉर दी होम प्रोडक्शन, जो विच मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें आप घर में लगा सकती हैं, पालक घर में लगा सकते हैं, साग घर में लगा सकते हैं, चलाई है, कई लोग भिंडी की सब्जी, बैंगन, ये वो, तो ग्रीन वेजिटेबल्स कईयों के पास जगह है. सो ये चीजें कई लोग गमलों में भी, मतलब आप जिस तरह से अपना बजट सेट करना चाहें, जो चीज आपको अपने घर में लगाना चाहे, पुदीना धनिया लोग, हरी मिर्चें लोग घर में उगाते हैं, मतलब इस तरह की चीजें. ठीक है. तो ये बजटिंग में बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें. ठीक है. मैम सॉरी, एक क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस करने हैं हमें असाइनमेंट में, उनमें एक क्वेश्चन है ये डाइट को ही, डाइट प्लानिंग को लेके, कि प्रेग्नेंट वुमन बिलोंगिंग टू अ लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लिए बैलेंस डाइट प्लान करना है. तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस में व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, कि हम लंच में ये दे रहे हैं, डिनर में ये दे रहे हैं, कि हमें आपने सिर्फ क्या है, पॉइंट्स लो कवर करने हैं. इकोनॉमिक स्टेटस है ना, तो आपको जी. प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करने हैं, आपको कार्ब्स भी प्रोवाइड करने हैं, आपको मल्टीविटामिन, तो आपको चीजें वही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी. जी मैम, ठीक है. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो आंसर हमें लिखना है असाइनमेंट के लिए, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, कि हम पॉइंट्स कवर करें कि एक्चुअल डाइट लिखें? नहीं, अगर आपसे डाइट पूछे है तो डाइट लिखेंगे. अगर पॉइंट्स पूछे हैं कि क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, तो वो आप वो लिखे. अब सपोज प्रेग्नेंट विमेन के लिए अगर आपसे सीधा सीधा डाइट प्लान बनवाया, तो आप सीधा सीधा डाइट प्लान लिखेंगे कि उसको मॉर्निंग में ये दीजिए, उसके बाद ये दीजिए, उसके बाद ये दीजिए. तो उसके सामने आप डाइटरी रिकमेंडेड इनटेक्स भी लिख सकते हैं कि ये अगर देंगे इसमें इतनी कैलोरीज जा रही हैं, ये जा रहे हैं तो इसमें इतने प्रोटीन जा रहे हैं, इतने कार्ब्स जा रहे हैं, और उसमें से टोटल एनर्जीज कितनी जा रही हैं. ठीक है. एनर्जी कैलोरीज कितनी जा रही हैं. ठीक है. उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है ना, so if they'll ask that what points should be taken care to give the meal plan or plan for the meal planning for the low privileged या under privileged female, pregnant female, तो आपको ये रखना पड़ेगा. फिर फूड बजटिंग के पे आप आओगे कि उसको क्या देना है, तो उसको उसकी फूड प्लानिंग पे आएंगे, और क्या क्या ख्याल. तो देखो, हर, अब आप ध्यान से सोचो,
अगर हाई क्लास की फीमेल है, मिडिल क्लास की है, लो है तो प्रेग्नेंट ना, न्यूट्रिशन तो उसको मिलना है, तो देना ही देना है। चीजों का ख्याल, जिन भी बातों का ख्याल आपने रखना है, द पॉइंट्स यू रियली नीड टू टेकन केयर शुड बी टेकन केयर, दे आर द सेम फॉर द हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, सबके लिए सेम होंगे प्रेग्नेंट, बिकॉज every kind of a female which is belonging to the different society levels or the economic levels, they are going to deliver the kid. So the every female should also be healthy after delivering the kid, and the kids which are actually infants जो भी birth होगा तो उसको भी। तो बात सिर्फ ये है कि एक हाई इकोनॉमिक स्टेटस को आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स प्लान डिफरेंटली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सभी के लिए 8 to 10 kg वेट आप होना चाहिए। थोड़ा कि है कि अब अमीर घर के कोई प्रेग्नेंट है फीमेल, वो जितना मर्जी खाए, जितना मर्जी वेट पुट ऑन कर ले, ऐसा तो नहीं है ना। हमने पहली कंडीशन क्या डिस्कस की है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ना 8 to 10 kg ही वेट ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज उसके बाद अगर ज्यादा बढ़ जाता है ना तो और कॉम्प्लिकेशन, बीपी एंड ऑल, वेट गेन से बड़ी सारी चीजें होनी शुरू हो। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, 8 to 10 kg इज इनफ, ठीक है। तो वो अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली अगर उसका नहीं होता है तो तब भी तो गलत है ना, उसके अपने पे और बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मिडिल क्लास में चलो ठीक है, दे कैन मेंटेन, बट दैट डजंट मीन द हाई क्लास वाली अब 8 to 10 kg है तो वो उस फीमेल का हम 20 kg भी, बिकॉज इफ शी हैज इनफ फूड टू ईट तो वो खाती ही रहेंगी और उनका वेट ज्यादा, नो वी कैन नॉट अफोर्ड। सबके लिए चीजें फर्क है, सिर्फ हमारी मील प्लानिंग के जो फूड आइटम्स होंगे वो फर्क होंगे, पर हमें प्रोटीन जितना, जिस कैटेगरी वाली को सोशली सेपरेटेड वाले फीमेल्स को जितने प्रोटीन्स देने, जितने कार्ब्स देने, जितने मिनरल्स देने, वो सब सबको सेम देने हैं। लेकिन फर्क क्या होगा, फूड आइटम फर्क होगी, ठीक है। उस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन्स जा रहे हैं, उस पे फर्क होगा। हमें फूड बजटिंग पे ख्याल रखना पड़ेगा, फूड आइटम्स पे ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। सो दिस इज द प्लानिंग। अब प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको बेबी को बर्थ देना है तो उसको अपनी भी ख्याल रखना है और बेबी का भी ख्याल रखना है, ये तो इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है, सबके लिए एक ही जैसी कंडीशंस होंगी, ठीक है। सो ये सब मील प्लानिंग्स हैं जो होंगी। तो इकोनॉमिक बजटिंग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, दिस इज क्वाइट अ सिंपल वन, इफ यू रीड इट यू विल गेट इट, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके। सो आई थिंक 2 hours के लिए टफ हो जाता है आज, थोड़ा सा मैं 15 minutes थोड़ी सी लिबर्टी ले रही हूँ, ठीक है। So we'll meet tomorrow and then we'll discuss. Okay. So I'm just closing. एक क्वेश्चन वही पूछना था कि वो अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आरसी वाले सर है तो प्लीज। हाँ जी सर, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, अगर आपको सर सुन रहे होंगे, ठीक है। सो ही कैन टेकन केयर कि जो भी दिया था आपने अकाउंट वो भी नहीं ओपन हो रहा है ना, जिस वे से कहा था। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने जो ईमेल भेजा था उसके ऊपर भी ईमेल किया rchandigarh@ignu.ac.in पे, और वहां से रिप्लाई आया कि csrc@ignu.ac.in पे आप रिप्लाई कीजिए, तो मैंने उसके, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने रिक्वेस्ट की थी मेरा व्हाट्सएप में ऐड कर लो प्लीज, मेरा चला नहीं। आप मुझे मैसेज कीजिए, आप क्या नाम है, देवी धालीवाल आला मेरे पास, तो हाँ जी हाँ आप मुझे मैसेज कीजिए सो दैट आई विल ऐड इट टू यू, या फिर जो भी एडमिन है वो ऐड कर देंगे। आप मुझे मैसेज नंबर प्लीज सेंड कर दो, तो कुछ किस पे आपको मैसेज करूं मैं? अभी आप ये जो मैसेजेस है ना उसमें देखिए, आप उसमें हर बार शेयर किया जाता है लिंक, ठीक है। ओके मैं मैसेजेस में मैं देखती हूं, ये है, आई कैन शेयर दिस व्हाट्सएप लिंक हियर, कॉपी करके मैं फिर से कर रही हूँ, आप इस पे कीजिए, ठीक है मैम। ये इनकॉल मैसेजेस में ये, हाँ अभी वाले मैसेजेस ग्रुप में अभी देखो ये जो चल रहा है ना, ये देखो ये मैंने कर दिया है शेयर, इस पे क्लिक करके इसके थ्रू आप ऐड हो जाइए। आप सब लोग ही हैं उसमें, आपस में आप लोग डिस्कस करते रहते हैं, मैं तो खैर इतना नहीं करती हूँ, ठीक है। तो एक चीज पूछनी थी मैम, ये जो असाइनमेंट को लेके तो DNH 1, 2, 3 मैम तीनों का अलग अलग लिख के अलग अलग सबमिट करने की, तीनों को एक साथ लिख, अलग अलग तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तीनों अलग अलग मैम अलग अलग सबमिट करने, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आपको जो ऑनलाइन से मिले तीनों अलग अलग डाउनलोड करने हैं। DNH 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आगे लगाने हैं, ठीक है। सो जब आप क्वेश्चन पेपर्स अलग लगा के पीछे रिटर्न होंगी ये, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये असाइनमेंट हमने ये रीजनल सेंटर ये देनी है या दिल्ली भेज दें, हम क्या करें?
ये आपका बेसिकली मुझे लगता है ये ऑनलाइन सबमिट होंगी, क्योंकि ये Okay. कोर्स ही ऑनलाइन है। ओके मैम, ओके ओके मैम। तो मैम मैडम, दिल्ली के माई नंबर, मैं आपका नंबर, अपना कोई कह रहा था मुझे अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। दिस इज माई नंबर 8427391122। ओके मैम, ओके जी, थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, हमने असाइनमेंट लिखा, पहला असाइनमेंट कंप्लीट किया, फिर उसमें जो 40 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल आंसर आप मुझसे शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज मैंने देखा ही नहीं है असाइनमेंट कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ओके ठीक है, थैंक मुझे हेलो नहीं पता किस तरह का क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन देखेंगे देन आई विल गाइड यू कि किस तरह से करना है उसको। एक्टिविटी बेस्ड होगा वो, मैम मुझे प्रैक्टिकल। हेलो मैम हाँ जी, मैम आई वांट योर नंबर। मैं 8427 एक 8427 मिनट मैम 8427 29 39 222। क्या मैम? 8427391122 1122। ओके थैंक मैम यू मैम। आरसी चंडीगढ़ वाले सर का नंबर मिलेगा क्या? उन्होंने बताया कि रिमेम्बर मी ऑन मंडे, तो मिलेगा हाँ उनका सर, मैं देख दे रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। याद दिला देना। हाँ जी। मैं वो साइकिल लेके जा रहा हूँ मैं। हेलो मैडम आवाज आ रही है? मुझे सबकी आवाज आ रही है, पर कौन बोल रहा है? सोनल जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैडम, एक क्वेश्चन है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, गुजराती हूँ, पर हिंदी में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पदार्थों में से प्रत्येक के लिए किसी भी 3 मापदंडों की गणना करें। अनाज, वसा, दूध और दूध की बनावट। मतलब इसमें क्या लिखना होता है? मैं आपके क्वेश्चन ना थोड़ा ही समझ पाई हूँ, आप प्लीज क्लियरली बोलिए। बनावट, अनाज की, वसा, ये सब मुझे समझ आया है, बट पूरी मैं तरह समझ वापस बोल रही हूँ, निम्नलिखित पदार्थों में से प्रत्येक के लिए किसी भी 3 मापदंडों की गणना करें। हाँ, निम्नलिखित में से मापदंडों की कुछ गणना करें। किनकी? निम्नलिखित में कुछ लिखा हुआ होगा। हाँ, ये अनाज है एक, फिर दूसरा है वसा और तीसरा है दूध और दूध की बनावट। हाँ, वही तो। अनाज क्या होता है? जो ग्रेन्स हैं। वसा मीन्स लिपिड्स, ठीक है। और तीसरा डेयरी प्रोडक्ट्स पे है, ठीक है। इनको आपने कितना कितना लेना है, इनकी गणना करनी है कि डेली फूड, वो ही मील प्लानिंग है ये। पर आपको किसके लिए करनी है, इन चीजों को कितना कितना डालना है, वो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम पेपर वुड बी एनी काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, ठीक है। सिंगल लाइन आंसर भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, सबका होता है। हर तरह का क्वेश्चन होता है। जिस तरह का आपको असाइनमेंट आती है ना, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आप असाइनमेंट में अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, जो डाउनलोड करके असाइनमेंट, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर होता है, ऑलमोस्ट उसी तरह। थैंक यू। ठीक है। अरे ये मापदंडों की गणना मतलब क्या होता है? मापदंडों की गणना मतलब जो आपको चीजें बताई हैं वो कितनी कितनी लेनी है। दिस इज कॉल्ड मील प्लानिंग। कितने कितने खाने हैं। हाँ, इसमें से अनाज कितना है, वसा मतलब होता है लिपिड्स, घी, तेल, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स कितने लेने हैं, और जो 3-4 चीजें लिखी हुई है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी लेनी है। कितने कितने मापदंड मीन्स मेजरमेंट्स। ओके, उनकी गणना मीन्स काउंटिंग कैलोरीज अकॉर्डिंग टू। ठीक है जी। सो विल मीट टुमारो डेफिनेटली एट द सेम टाइम। Thank you so much for attending the class. Please keep reading also. Keep asking the questions and keep your questions ready for tomorrow class. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.